Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 499. نمبر مختصر ہمارے ساتھ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ صاحب، ایسوسی ایشن کے چیئرمین صاحب اور مکھیا نیما کمریانی کو میں بھول گیا، پہلے کہنا چاہیے تھا۔ میرے وائزین بھائیوں، بچوں، بہنوں، بھائیوں، میرا ارادہ تھا کہ انگلش کے اندر کنڈکٹ کیا جائے آج کا سبجیکٹ، مگر 10 اوتار کی بعض ایسی باتیں ہیں کہ جن کو انگلش زبان شاید سمجھا نہ سکے۔ میں اپنی سیدھی سادی آسان بھاشا کے اندر جو کچھ بھی بن سکے گا، یہ بہت ہی زیادہ مشکل اور لمبا سبجیکٹ ہے، جس کے اوپر ایک آدھ کلاس میں نہیں لیکن 5-7 سیریز لیکچر کے اندر اچھی طرح سے یہ چیز بنائی جا سکتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنا آسان بن سکے میں اتنی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، میں ابھی کلام امام مبین کے سیکنڈ پارٹ میں ڈھونڈ رہا تھا مگر جلدی سے مل نہ سکا، اور میری سب کتابیں باکسز کے اندر بند ہیں، مگر نہ میری کتابوں میں ایسا ہے کہ میں اپنی کتابوں کے اندر نشانات رکھتا ہوں اور جو بھی مجھے ریفرنس چاہیے میں آسانی سے ڈھونڈ سکتا ہوں، مگر میرے کاغذوں کے اندر پیپرز میں سے اس فرمان کا ایک انگلش ٹرانسلیشن میرے پاس موجود ہے، اور میں اس فرمان مبارک سے آج کا یہ لیکچر یا اسپیچ یا ٹاک یا وائز جو کچھ بھی سمجھو میں شروع کرتا ہوں۔ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا، اور یہ فرمان اسماعیلی ایسوسی ایشن میں بامبے کے اندر ہوا، ایکسپلین the philosophy of 10 Avatar according to the Islamic principles. Also, explain the Nur of Allah before the creation, which is present since then. During the time of Islam Shah, Sir Sadruddin had explained to you the fundamentals of religion, explain according to that to the Jamaat. امام فرمایا مشنریوں کو کہ 10 اوتار کی جو فلسفی ہے اس کو تم اسلامک پرنسپلز کے حساب سے جماعت کو سمجھاؤ، اور یہ بھی سمجھاؤ کہ سرشٹی کی رچنا سے پہلے
خدا تعالیٰ کا جو نور تھا اس کی بابت بھی جماعت کو سمجھاؤ، اور وہ نور اس زمانے سے یعنی کریشن کے بھی پہلے سے اب موجود ہے، یعنی حضرت امام۔ ماں باپ فرمایا کہ پیر صدر الدین نے مولانا امام اسلام شاہ کے زمانے کے اندر تم کو اسماعیلی مذہب کے جو سدھانت ہیں وہ تمہیں بتائے، وہ سدھانت مشنریوں کو فرمایا جماعت کو بتاؤ۔ امام کا یہ اشارہ کہ 10 اوتار کو تم اسلامک پرنسپل سے سمجھاؤ، ذرا انسان کو سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی بہنوں کا یہ خیال ہے کہ یہ 10 اوتار کی بات تو ہندوؤں کی بات ہے، بھلا اس کے ساتھ اسلام کس طرح سے لگ سکتا ہے، اور وہ بھی اسلام کے پرنسپل۔ اچھا چلو ہم اس کے اوپر وچار کریں۔ یہ وائزن کی کنونشن ہے، اس کے لیے آج کا میرا جو سٹائل ہے بولنے کا وہ وائز کی طرح کا نہیں ہے۔ میں وائزین کو ایکچولی کہہ رہا ہوں اور جماعت کو نہیں کہہ رہا، مگر جماعت سن رہی ہے۔ میرا ایڈریس جو ہے وہ وائزین کی طرف ہے اور ان اسٹوڈنٹس کی طرف ہے کہ جو اسماعیلی مذہب کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ شاید فیوچر کے اندر میرا یہ لیکچر کام آ سکے۔ امام کے اس فرمان کو ہم تھوڑے ڈسکشن میں لے کے آئیں، جیسا میں نے عرض کی کہ 10 اوتار کو اسلامک پرنسپلز کے حساب سے بتاؤ، تو ہم پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام کے پرنسپلز کیا ہے۔ مگر اسلام کے پرنسپلز میں بیان کروں اس کے پہلے، کیونکہ 10 اوتار کی بات ہے تو میں پہلے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ 10 تو ٹھیک 10، مگر اوتار کا مطلب کیا ہے، اوتار کا ایکسپلینیشن کیا ہے۔ اوتار جو ہے اس کی روٹ ہے تارن ہار، اور اس میں سے نکلا اوتار، اتارنا والا، جیسے اودھار، اودھار ناؤن کے اندر بھی آتا ہے اور ورب میں بھی آتا ہے۔ اودھار کہتے ہیں کسی شخص کو مشکل میں سے نکال کے منزل پہ پہنچانا، اور اوتار اس کو کہتے ہیں کہ جو اس دنیا کی گناہوں میں سے نکال کے اس کو مکتی دلائے، اس کا نام اوتار ہے۔ ہم پھر اس کو اوتار کہہ دیتے ہیں۔ اوتار کا ہندوؤں کے عام پبلک کے اندر یہ امیج ہے کہ خدا بدن کے اندر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنی اس محبت اور حب میں، اپنے پیار کے اندر اس ڈیٹی کو کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہندوؤں کی نظر میں، ہندوستانیوں کی نظر خدا کی ساکشات مورتی ہے۔ ساکشات مورتی کا مطلب آنکھ سے دکھ سکے، ہاتھ سے چھوئی جا سکے، کانوں سے اس کی آواز سنی جا سکے، اور ہم اس کو کہیں تو وہ سن سکے۔ اوتار کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ جس کو کہتے ہیں انسان کی کنڈیشن۔ ایک آدمی کام کاج کر کے کپڑے اس کے خراب ہو گئے، بدن میں سے پسینہ نکلا، بال بکھر گئے، تو ایڈیومیٹک لینگویج کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں تم اپنا اوتار کو دیکھو۔ یہاں اس اوتار کا مطلب خدا کا اوتار نہیں، اوتار یعنی حالت کو بھی اوتار کہتے ہیں، کنڈیشن کو اوتار کہتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس 10 اوتار کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ 10 اوتار ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے نورانی مظہر تھے، یعنی مینیفیسٹ۔ تو اس کے لیے اب ہم یہ سوچیں کہ اسلام کے پرنسپلز کیا ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا پرنسپل جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید کہتے ہیں یونٹی آف اللہ، یعنی ایک خدا ہے۔
खुदा 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, खुदा एक है। ये इस्लाम का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल यह है रिसालत का। रिसालत का प्रिंसिपल यह है कि अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला न जिसकी कोई शक्ल है, न जिसका कोई बदन है, न उसने किसी को अपने बदन में से जन्म दिया, न किसी ने उसको अपने बदन में से जन्म दिया, न किसी ने उसको बनाया, न किसी ने उसको अच्छी तरह से जाना। उसकी एक ही रहने की कोई जगह नहीं और वो हर जगह मौजूद है। उसने सबको बनाया, उसको किसी ने नहीं बनाया। खुदा की इन तमाम सिफतों को अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्माइली अच्छी तरह जानते हैं। यह खुदा ताला के तौहीद का जो पहले में पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल है इस्लाम का, तो वो ये है। और हम इस्माइली अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के इस फंडामेंटल और फर्स्ट प्रिंसिपल को अच्छी तरह मानते हैं कि खुदा एक है। हमारे गिनान भरे हुए हैं, हमारे पीरों के और हमारे फरमान जो हैं इमामों के, वो भी हमारे भरे हुए हैं। और हर एक इस्माइली बच्चा इस बात को जानता है। किसी को भी पूछ लो कि भाई खुदा कितने, तो कहेगा खुदा एक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में से एक भी ऐसा नहीं कि जो 2 खुदाओं को मानता हो या एक से ज्यादा खुदा मानता हो। खुदा एक ही है, वहदहू ला शरीक लह, उसका कोई भागीदार नहीं, उस जैसा कोई दूसरा नहीं। न उसकी बीवी है, न उसके बच्चे हैं, न उसका कोई भाई है, न उसका कोई चाचा मामा है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं, सब उसने बनाए हैं। ये खुदा ताला की जो सिफतें हैं, ये सिफतें किसकी हो सकती हैं? अगर किसी का बदन होवे तो वो सिफतों में आ सके, लेकिन अल्लाह के बदन ही नहीं, तो यह जाहिर हुआ कि ये तमाम की तमाम सिफतें जो हैं वो नूर की सिफतें हैं। और खुद खुदा ताला ने इस बात के लिए कहा है कि मैं नूर ही नूर हूं। तो तौहीद का मतलब अगर समझना है तो हमें ये जानना चाहिए कि खुदा है वो नूर है और नूर एक ही है, उस जैसा कोई नहीं। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है रिसालत का, यानी खुदा ताला ने क्योंकि वो नूर है, उसने सृष्टि बनाई, उसने इंसान मखलूकात बनाई, जानवर भी बनाए, दरख्त, वनस्पति, वेजिटेशन, ये सब चीजें बनाई, पहाड़ बनाए। जरा घूम के देखो तो सही, दुनिया का ज्योग्राफी देखो तो आपको इतना मजा आएगा पढ़ने के अंदर। क्या कमाल किया है खुदा ताला ने, इतनी बड़ी लाखों नहीं करोड़ों अब्जों टन जितनी वजनदार ये पृथ्वी, करोड़ों टन इसका वजन है। और कोई डोरा, कोई धागा, कोई चेन, कोई तार, कोई चीज ने इसको बांधा हुआ नहीं। और ये पृथ्वी, ये हमारा ग्लोब, ये अर्थ इतने बड़े वजन के साथ कि बिलियंस ऑफ फैथोम पानी इसके अंदर समुन्द्र में बैठा है। खाली हिमालय पर्वत को वजन करना चाहो तो हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। ऐसी वजनदार हमारी जमीन 72,000 माइल 72,000 माइल एक कलाक में स्पेस के अंदर भाग रही है। स्पेस में भाग रही है एक कलाक में 72,000 माइल, मोर देन 1100-1200 माइल्स पर मिनट। इतनी बड़ी, इतनी वजनदार पृथ्वी, और ये इस जोर से भाग रही है। और साथ साथ अपने ऊपर नीचे जो नॉर्थ और साउथ पोल का जो एक्सिस है ना, इसके ऊपर घूम रही है। इसकी स्पीड तकरीबन 1000 एक कलाक में है, 1000 माइल एक कलाक में। हम लोग टोरंटो में बैठे हुए हैं, लेकिन 1000 माइल की स्पीड से हम भाग रहे हैं, पता लगता है। और स्पेस के अंदर हम लोग एक सेकंड में 1100 माइल की स्पीड से जा रहे हैं, पता लगता है। पहाड़, चरिंदे परिंदे, इंसान, पानी, जंगल, बेहिसाब चीजें भाग रही है और करोड़ों बरसों से भाग रही है। करोड़ों बरसों किसने बनाई?
ये ऐसी गजबनाक, ऐसी अच्छी पृथ्वी किसने बनाई? उस खुदावंद करीम ने बनाई, जो खालिक अकबर है, बेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स है, उसने बनाई। सिर्फ एक जमीन ही ले लो, बाकी की चीजें छोड़ दो, पृथ्वी की ही बात कर लो तो खुदा की बड़ाई का पता लग जाता है। ठहरो, मैं आपको कुछ और कहूं। हमारी जमीन अपनी एक्सिस के ऊपर घूम रही है 1000 से ज्यादा माइल एक कलाक में, इसमें से 24 घंटे का दिन रात बनता है। और ये जमीन तकरीबन 3 लाख 2 लाख माइल 3 कलाक में, यानी 70-72 हजार माइल की स्पीड से स्पेस में भाग रही है। कहां भाग रही है? सूरज के इर्द गिर्द भाग रही है। और ये सूरज एक जगह खड़ा नहीं, सूरज भी भाग रहा है, और सूरज की स्पीड हमारी पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा है। और सूरज हमारी पृथ्वी से 10 मिलियन टाइम्स बड़ा है। 1 करोड़ अर्थ, 1 करोड़ जमीनें इकट्ठी करो तो एक सूरज बने, इतना बड़ा है। और सूरज हमारी पृथ्वी से 9 करोड़ 96 लाख माइल दूर है। और फिर ये सूरज अकेला नहीं, इसके 9 बच्चे हैं। ये तमाम 9 प्लेनेट्स को, अपने बच्चों को लेके, सब बच्चे इसके इर्द गिर्द भागते हैं, और सूरज अपने तमाम बच्चों को लेके स्पेस में भाग रहा है। कहां भाग रहा है? गैलेक्सी के आजू बाजू में। 10 गुना ज्यादा सूरज की फैमिली की स्पीड है, अर्थ से भी 10 गुना ज्यादा। यानी आप ऐसा ख्याल करो कि सारी सोलर फैमिली लगभग 10-12 हजार माइल 1 मिनट की स्पीड में भाग रहे हैं। और फिर ये सारा सोलर सिस्टम जो गैलेक्सी के इर्द गिर्द चल रहा है, ऐसे 32 सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी में है, और वो सब इसी तरह से भाग रहे हैं। और ये गैलेक्सी, ये सारी 32 सोलर सिस्टम की फैमिलीज को लेके मिल्की वे के इर्द गिर्द भाग रहे हैं। यानी कोई चीज खुदा ताला ने स्टेबल नहीं बनाई, हर चीज भाग रही है। साइंटिस्ट को पता नहीं है अभी तक कि हमारी पृथ्वी की 7 मूवमेंट्स हैं, लेकिन हमारी निकलंकी गीता में हमको बताया गया है, 500 वर्ष पहले हमको बताया गया कि जमीन की 7 मूवमेंट्स हैं। इधर कोई फिजिक्स पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे, जाओ ढूंढो कि हमारी पृथ्वी की तुम्हारी किताबों में से कितनी मूवमेंट्स निकलती है। 7 की 7 मूवमेंट्स में आज बयान नहीं कर रहा, उसके लिए मुझे ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमको कहा गया कि हमारी पृथ्वी की 7 मूवमेंट्स हैं। लेकिन एक और मूवमेंट उसकी बता दूं, हमारी जो पृथ्वी है, ये मैं सब क्यों कह रहा हूं, हमारे गिनानों का ये भाग है। ये जो फिजिक्स का भाग है, ये हमारे गिनानों का भाग है। खुदा ने क्या क्रिएट किया और कैसे क्रिएट किया, ये खुदा ताला की बड़ाई की एक बात है। देखो, पृथ्वी की एक और मूवमेंट है, और वो ये है कि हमारी पृथ्वी एक गोले की तरह है, लेकिन एब्सोल्युटली फुटबॉल की तरह गोल नहीं, जरा ऊपर और नीचे फ्लैट है, जिसको हमारे पीरों ने ईंदानु आकार कहा। हमारे पीरों ने गिनानों के अंदर बहुत आला दर्जे की टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है, और हैरान होता है कि पीरों को ये सब पता कैसे लगा, रूहानी हिसाब। तो हमारी जो जमीन है वो ऊपर और नीचे ऐसा बैठी हुई है, जरा इसको पीरों ने कहा कि ईंडा को आकार है, ईंडे की शक्ल में है, मगर ये बिल्कुल सीधी नहीं। नॉर्थ पोल ऐसा जरा टिल्ट हुआ है, 62.5 डिग्री के ऊपर नॉर्थ पोल टिल्ट है। एग्जैक्टली नॉर्थ पोल और हमारा जो इक्वेटर है वो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता, राइट एंगल नहीं है। हमारी जो पृथ्वी के ऊपर राइट एंगल जरूर है, लेकिन ऊपर के जो पोल है, नॉर्थ पोल, वो 62.5 डिग्री के ऊपर टिल्ट है। और ये टिल्ट यूं ही नहीं, बल्कि ये ऐसा घूम रही है जिसको हम कहते हैं वॉबलिंग कर रही है। गाड़ी का एक पायरा, कार का एक व्हील, आगे का या पीछे का, अगर उसका जो बैलेंस बराबर नहीं, व्हील बैलेंसिंग बराबर नहीं, तो वो व्हील जब भी चलता है तो ऐसा ऐसा चलता है, जिसको कहते हैं हम वो वॉबल करता है इंग्लिश में।
ये हमारी जो जमीन है वो सूरज के गिर्द स्पेस में भाग रही है 2 लाख माइल 3 घंटे के अंदर, मगर वॉबल कर रही है, हिल रही है। और ये जो वॉबलिंग की जो स्पीड है इसको 52,000 बरस लगते हैं। इसके जो वॉबलिंग का जो एंगल है इसको पूरा करने के लिए 52,000 ईयर्स लगते हैं। एक और उसकी पृथ्वी की स्पीड है कि जो नॉर्थ पोल है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, साउथ पोल ऊपर जा रहा है, और ये इस तरह से ऐसा जो चक्कर लेके लगेगा ऊपर जाएगा तो इसको करोड़ों बरस लगेंगे। ये सब चीजें हमको हमारे गिनानों में से मिलती। तो ये जो जमीन खुदा ताला ने बनाई, क्रिएट की, फिर उसके अंदर जो कुछ भी क्रिएट किया, पर्टिकुलरली लाइफ क्रिएट की, तो उस लाइफ को क्रिएट करने के बाद खुदा ताला ने उसका ध्यान रखने के लिए उसके अंदर से ही अपने नूर को खड़ा किया, और इसको हम कहते हैं, गुरु ब्रह्मा कहते हैं या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर कहते हैं। रसूल अकरम फरमाते हैं, अना मिन नूरुल्लाह वकुल्लुहुम मिन नूरी, मैं खुदा के नूर में से हूँ और हर चीज क्रिएशन में जो कुछ भी है वो मेरे नूर में से बनी है। तमाम सृष्टि, एवरी क्रिएटेड थिंग इज फ्रॉम नूर ऑफ मोहम्मद। तो दूसरी सेंस में जो मोहम्मद का जो नूर है वो क्रिएटर है, मोहम्मद का जो नूर है वो क्रिएटर है। यानी खुदा ताला की नूरानी हालत जिसने क्रिएट किया है हम उसी को मोहम्मद कहते हैं। और खुद रसूल अकरम फरमाया, और ये भी फरमाया कि तमाम नबियों के अंदर मेरा ही नूर था। यानी मतलब ये है कि हर नबी मोहम्मद ही का नूर है। तो अली कहाँ है वो बात मैं बयान करता हूँ आपको। मैं इस्लाम के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बयान कर रहा हूँ 10 अवतार समझने के लिए, कि जिसके लिए इमाम सुल्तान मुझसे फरमाया, एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ 10 अवतार अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो पहले हमें इस्लाम के प्रिंसिपल समझने चाहिए, जो मैं ये समझा रहा हूँ कि खुदा नूर है, उसकी कोई बॉडी नहीं, मगर उसने दुनिया के अंदर जब मखलूकात पैदा की तो उस मखलूकात की हिदायत के लिए उसने अपने इस नूरानी मजहर को, कि जिसके नूर में से उसने पैदा किया, जैसे कि माँ के वुम्ब में से बच्चा पैदा होता है मगर वो बच्चा माँ का नहीं बाप का है। भले पैदा करने वाली माँ है, माँ ने उसको बड़ा किया, माँ ने उसको ठीक किया, माँ ने उसको जवान बनाया, लेकिन वो खुदा का है। यानी मैं रसूल अकरम को माँ की तरह कह रहा हूँ, वो खालिक है, वो रब है, और वो उसको पार उतारने वाला है। कौन पार उतारेगा? मोहम्मद। मोहम्मद पार उतारेगा, मोहम्मद शफायत करेगा, मोहम्मद हमारे गुनाह मुआफ कराएगा। मोहम्मद खुदा के सामने खड़ा होकर कहेगा कि ये मेरी उम्मत है, मेरे लिए रहम कर दे। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान पाक के अंदर है कि कयामत के दिन मैं मोहम्मद को कहूंगा, सर ऊंचा करो, ऐ मेरे हबीब मांगो क्या कहते हो। तो रसूल अकरम अपनी उम्मत की शफायत की दुआ मांगे। तौहीद और रिसालत ये 2 जबरदस्त प्रिंसिपल हैं दीन इस्लाम के, और यही 2 प्रिंसिपल्स हमारे इस्माइली मजहब के अंदर हैं। मैंने अपनी बाज वाज़ों के अंदर समझाया हुआ है कि खुदा ताला के जो नाम हैं, यानी उसकी जो सिफतें हैं, उन सिफात को जिसको इंग्लिश में हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, उसकी 2 कैटेगरीज हैं। और ये चीज आलिम मुसलमान मानते हैं, एक जलाली सिफत है, एक जमाली सिफत है। जलाली सिफत जो है, ये सब चीजें आपको 10 अवतार समझने में काम आएंगी, इसके लिए मैं बयान कर रहा हूं। जलाली सिफतें जो हैं, जलाली गर्मी को कहते हैं, जलाल तेज को कहते हैं, जलाल वार्मथ को कहते हैं, जलाल अथॉरिटी को कहते हैं। तो ये तमाम सिफतें
जो खुदा की जलाली सिफतें हैं, जिसमें अथॉरिटी है, जिसमें तेज है, ताकत है, पावर है, जबरदस्ती है, जब्बार है, कहार है, ये सब उसकी जलाली सिफतें हैं। वो बादशाह है, सुल्तान है, तो ये उसकी जलाली सिफतें हैं। जमाली सिफतें जो हैं वो नरम है, सहन करने वाली हैं, फायदा पहुंचाने वाली हैं, बख्शिशें देने वाली हैं। जलाली सिफतों के सामने जमाली सिफतें नरम हैं और नीची हैं। जैसा कि रहीम, रहीम कहते हैं दया करने वाला। रहमान, रहमान कहते हैं मांगे बगैर बख्श देवे, उसके अंदर भी दया और रहम है। वहाब, बख्श देने वाला। रब, पोषण देने वाला, सस्टेन करने वाला, मेंटेन करने वाला। ये तमाम सिफतें जो हैं ये जमाली सिफतें हैं। जमाली सिफतें जो हैं वो माँ की तरह हैं, जलाली सिफतें हैं वो बाप की तरह हैं, एक बादशाह की तरह हैं, और जमाली सिफतें एक वजीर की तरह हैं। ये सिफतें समझ लेने के बाद हमको ये आसानी से पता लग जाता है कि हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाका, हमने तुमको भेजा, इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, हमने नहीं भेजा किसी और तरीके से बच। यानी उसका मतलब यह है कि ऐ नबी, आप तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। रहमत किसकी है? रहमत खुदा की। तो खुदा की रहमत पर्सोनिफाई हुई मोहम्मद के बदन में। अब देखो, खुदा ताला की रहमत ने एक अवतार लिया और वो अवतार मोहम्मद का है। खुदा ताला ने अपनी रहमत को इंसान की शक्ल में बनाया और उसका नाम रखा मोहम्मद। ये उसकी जमाली सिफत थी। इसी तरह से जब उसने क्रिएशन चलाई तो महज जमाली सिफत ही की जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया के अंदर, उसकी मखलूकात के अंदर शैतान भी है, उसकी मखलूकात के अंदर बदमाश भी हैं, लुच्चे भी हैं, तो उनको जमाली सिफत कंट्रोल नहीं कर सकती। तो उसके लिए अपनी जलाली सिफत को जाहिर किया और इस जलाली सिफत का नाम ही हमने अली रखा, इमाम रखा। और ये जो इमाम है ये अल्लाह की जलाली सिफतों के मजहर हैं। मजहर कहते हैं अवतार को, मजहर कहते हैं मैनिफेस्टेशन को, मजहर कहते हैं पर्सोनिफिकेशन को। तो जिस तरह से खुदा की रहमत उसकी पर्सोनिफिकेशन मोहम्मद है, तो खुदा ताला की जो ताकत और कुव्वत है, खुदा ताला की जो अथॉरिटी और पावर है, वो पर्सोनिफाई हुई अली की शक्ल में। जब आप इस्माइली मजहब के लिए जानना पहचानना चाहो तो दीनदारों, आपको शिया सोर्सेज पढ़नी चाहिए। सुन्नियों की किताबों के अंदर से आपको अपना मजहब नहीं मिलेगा। एक हदीस है और वो हदीस हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से मंसूब है और ये शिया सोर्स में से है और इसको 2-3 इमामों ने बयान फरमाया है। इमाम मोहम्मद बाकिर ने भी फरमाया है, इमाम जाफर सादिक ने भी फरमाया है कि हजरत रसूल अकरम जब मेराज पे गए और हजरत जिब्रील अकेले एक खास जगह के ऊपर आके अटक गए, कहा या नबी मैं और इसके आगे नहीं जा सकता। तो जब हजरत रसूल अकरम आगे गए तो देखा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम वहां बैठे हुए हैं। तो क्या सवाल है, तो क्या मोहम्मद से पहले अर्श पे अली था? हाँ हाँ, इसी के लिए तो मेराज हुई। मोहम्मद के जानने के लिए नहीं, लोगों के जानने के लिए। दुनिया भर के 100 करोड़ मुसलमान हर बरस लैलतुल मेराज मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? खुशियां करते हैं कि रसूलुल्लाह को, हमारे नबी को मेराज हुई है। दुनिया भर के 100 करोड़ मुसलमान हर बरस
लैलतुल मिराज मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? खुशियां करते हैं कि रसूलुल्लाह को, हमारे नबी को मिराज हुई, मगर उसके अंदर का भेद न समझे। खुशियां मना लेते हैं मगर हम भेद न समझे। वो भेद ये है कि खुदा की जो जलाली सिफत थी, जो एक पिदराना पैटर्नल सिफत है, बाप जैसी सिफत है, जो अथॉरिटेटिव है और पावरफुल है, हिसाब किताब लेने वाली है और सजा देने वाली है, ये सिर्फ इमाम की है। इन्हीं चीजों को, इसी मैनिफेस्टेशन को हमारे गिनानों के अंदर अवतार कहा गया। और जो जमाली सिफतें हैं उसको हमने गुरु ब्रह्मा या नबी मोहम्मद एक ही हैं, उनको हमने पीर के तौर पे ले लिया। यानी शाह और पीर ये इस्लामी प्रिंसिपल है। ये समझने के बाद कुरान पाक में से चंद आयतें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। मैं अभी तक 10 अवतार को छेड़ा नहीं, लेकिन आपको मैं तैयार कर रहा हूं। देखो, खुदा ताला ने, हमारे गिनान भी कहते हैं और हम भी जानते हैं आज साइंस के थ्रू से कि खुदा ने ये क्रिएशन कैसे पैदा की। सदरुद्दीन फरमाते हैं कि खुदा ताला की मर्जी हुई कि मैं क्रिएट करूं। क्रिएशन बनाने से पहले उसने क्या किया? खुदा ताला ने अपने मुंह में से फूंक निकाली, फिन निकाली, जिसको हम झाग कहते हैं, लेथर कहते हैं। साबुन लेके आप उसको पानी के साथ ऐसा रगड़ो तो उसमें से लेथर निकलती है, फिन निकलती है। कैसी मुश्किल चीज को कैसी आसान तरीके से समझाने के लिए पीर ने यह रास्ता निकाला कि श्री साहेब जी मुख माथी सीन नु गोटो काढ़ो। खुदा के मुंह में कोई थूक थी, सलीवा था, लेकिन एलेगरी ये है कि उसने हुक्म दिया कुन, और वो हो गई फयाकुन। मतलब उसका ये है कि खुदा ने जब हुक्म दिया कि हो, तो क्या हुआ कि सीन का एक गोटा निकला। जब ही हुक्म किया तो अंदर से हवा निकलती है। ये जो हवा है ये गैस है। तो खुदा ताला ने सबसे पहले गैस बनाई और वो गैस रिवॉल्व होती रही। रिवॉल्व होते 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 सॉलिडिफाइड हुई, यानी थिक हो गई। जब वो थिक हो गई तो वो गोटा बन गया। गोटा मीन्स बॉल बन गया। और ये जो बॉल था, फरमाया फिर सदरुद्दीन ने कि तेमासी कीणु ईंडानु आकार, और उसमें से, उस तीन के गोटे में से ओवल शेप का, अंडे की शक्ल का आकार बनाया। ये यूनिवर्स बना। आप यूनिवर्स में देखोगे, फिजिक्स में आप देखो और पढ़ो तो आपको पता लगता है कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो तमाम की तमाम 100% राउंड नहीं है, घूमने की वजह से ऊपर से फिस गई हैं और उनकी शक्ल अंडे की तरह ओवल हो गई है। यह है गिनानों में 500 वर्ष पहले। अब ये जो आकार बनाया, तो जो भी, मैं सिर्फ अभी ये ले लूं, अपनी अर्थ की बात करता हूं कि हमारी अर्थ जब सूरज में से निकल आई तो ये तो एक आग का गोला थी, और आग गैस है, गैस ही गैस है। तो ये जो गैस थी रिवॉल्व करती रही धरती, उसकी वजह से आहिस्ता 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 ऊपर से ठंडी होती गई। ठंडी होते 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 उसके अंदर से पत्थर वगैरह बने, उसमें से पहाड़ बने, खड्डे बन गए। आज भी हमारी जमीन के अंदर बेहिसाब आग है। हमारी जमीन इधर से उधर एक सुआ लेके ऐसा डाल दो, इधर से उधर करके, तो आपको मालूम है 8000 माइल है। इक्वेटर टू इक्वेटर अंदर से एक सुई डाल देने बड़ी लंबी, तो 8000 माइल है। ये 8000 माइल में 2000 माइल इधर, 2000 माइल इधर, ये जमीन का क्रस्ट है ऊपर, वो कमती है, चंद माइल का है,
लेकिन अंदर जो 4000 माइल है, 4000 माइल डायमीटर, वो आग ही आग है। आज भी हमारी जमीन के अंदर आग ही आग है, और ये आग थोड़े थोड़े टाइम के बाद वोल्केनो की शक्ल में हमको नजर आती है। तो आज भी करोड़ों अब्जों बरस हो जाने पर हमारी जमीन 100% ठंडी नहीं हो सकी। तो जब ये ऊपर क्रस्ट बन गया, ऊपर ठंडी हो गई, तो ठंडा होने की वजह से खुदा ताला की जो लॉज थे उसके हिसाब से जो गैस थी उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाने से पानी बन गया। कुरान शरीफ की चंद आयतें हमारे सामने हैं। तो खुदा फरमाया वजालना, हमने बनाया, मिनल माय, पानी के अंदर से, कुल्ला शैइन हय्यिन, हमने जितनी भी लाइफ है, कुल्ला शैइन हय्यिन, हर वो चीज के जो जीवती है जिसमें लाइफ है उसको हमने पानी में से बनाया। 1400 बरस पहले दुनिया के किसी साइंटिस्ट को पता नहीं था कि हर चीज पानी से बनी है। पानी जो है वो इटसेल्फ केमिकल है, और लाइफ की सारी स्टोरी केमिकल्स के ऊपर है। खुदा ताला का ये फरमान कि जो सूरतुल अंबिया के अंदर है कि हमने हर शय को, सूरतुल अंबिया की 31वीं आयत है कि हमने हर शय को पानी से बनाया। वजालना मिनल माय कुल्ला शैइन हय्यिन, हर चीज को हमने पानी से बनाया। और फिर एक और चीज कहा, लतर तब्बेना तबकन मन तबक, और हमने, बिल्कुल मान लो इस बात को सच समझ के, कि तुमको हमने स्टेज बाय स्टेज बनाया। लतर तब्बेना तबकन मन तबक, that you shall surely pass on from one stage to another stage. सूरतुल अनशकाक के जो 84वां सूरा है उसकी 19वीं आयत है कि हमने तुमको तबकन ब तबकन बनाया, और तुमको तबकन ब तबकन बनना पड़ेगा। फ्यूचर टेंस है। पानी में से हर जिंदा चीज बनाई, और फिर फ्यूचर टेंस में है कि तुमको तबकन बाद तबकन, स्टेज बाय स्टेज गुजरना पड़ेगा। एक और आयत बहुत समझने जैसी है, सब्बे इस्म रब्बिकल आला, अपने आला दर्जे के पालने वाले की वखान करो, सिफत करो। अल्लज़ी खलका फसव्वा, जिसने तुम लोगों को पैदा किया और परफेक्ट बनाया। वल्लज़ी कद्दरा फहदा, और वो डिजाइन बनाता है और गाइड करता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसा है, ग्लोरीफाई द नेम ऑफ दाई लॉर्ड द मोस्ट हाई, who creates and makes it perfect, and who designs and guides। सब सिफतें इसमें आ गई। यह है सूरतुल आला, जो 83वां सूरा है कुरान पाक में, इसकी पहली 3 आयतें हैं। इन तमाम चीजों को सामने रख के पता लगता है कि खुदा ताला ने ये जो क्रिएशन बनाई अपने हुक्म से बनाई, और खुदा ताला नूर है, इसलिए हम इस्माइली खास तौर पे, क्योंकि हम तरीकती हैं और बातूनी हैं, और जितने भी सूफी हैं वो भी इस चीज को कबूल करते हैं कि खुदा ताला नूर है, नूर मुतलिक है। मगर इसके साथ साथ उसके साथ लगी हुई जितनी भी चीजें हैं, यानी खुदा ताला के जितने नाम हैं, खुदा की जितनी सिफतें हैं, खुदा के जितने काम हैं, खुदा के जितने हुक्म हैं, वो सब के सब नूर हैं, वो सब के सब नूर हैं।
खुदा ताला का जो हुक्म है वो भी नूर है। कुरान शरीफ के अंदर खुदा ने अपनी हिदायत को भी नूर कहा। तो खुदा ताला का जो हुक्म है वही तो हिदायत है ना। उसके हुक्म से जो चीज बनी वो नूर में से बनी। तो खुदा ने जब पानी बनाया तो पानी में से लाइफ शुरू हुई, वो क्या है? एमीबा है। एक सिंगल स्पर्मेटोजा, एक सिंगल सेल बना। आपको बनाना है वो सेल, एक गुनी का टुकड़ा ले लो, उसको कोई ऐसी जगह के ऊपर अपने बैकयार्ड गार्डन में रख दो, गंदा करके मड के अंदर डाल के, कि जहां डायरेक्ट धूप की लगती हो, थोड़ा थोड़ा पानी उसके ऊपर फेंकते रहो। और कभी छोटा बच्चा घर में है तो कहो इसके ऊपर थोड़ा सा पेशाब भी कर दो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप करो, बच्चे को कहो पेशाब कर दे। 5-6 वीक के बाद इसके अंदर बैक्टीरिया बड़े हो जाएंगे। बैक्टीरिया तो है ही, पानी में भी बैक्टीरिया है। पेशाब करने से उन बैक्टीरिया को केमिकल ज्यादा मिल गए। कभी पेशाब ना भी करे बच्चा तो भी वो केमिकल्स आहिस्ता थोड़ा ज्यादा वक्त लेंगे, लेकिन इसमें से जो बैक्टीरिया हैं वो बड़े हो जाएंगे और आपको आंख से दिखेंगे। तो खुदा ताला ने इस तरह से पानी से एमीबा, एक सिंगल सेल पैदा किया। और ये जो सिंगल सेल था जो मिट्टी और पानी से बना, इसी को अरबी ज़बान में आदम कहते हैं। आदम का जो मतलब है, आदम की जो रूट है वो ये है, मिट्टी से बना हुआ। हम जिसको कहते हैं मिट्टी से बना हुआ, न सिर्फ इंसान, कोई भी जो चीज जीवदार है, लाइफ वाली है, मिट्टी से बनी है, वो आदम है। अगरचे हम अपने आप को आदमी समझते हैं, लेकिन आदमी अगर लफ्ज आदम ले लेने और उसकी रूट का ख्याल कर लेने, ओरिजिनलिटी का, तो जानवर में से वो जानवर जो सबसे पहले पैदा हुआ वो आदम था। तो वो दुनिया के अंदर जो पहला सेल हुआ वो आदम था। उस एक सेल में से 2 हुए, 2 में से 4 हुए, 4 में से 8 हुए, और भी सेल्स पैदा हुए। खुदा ताला जो है वो अलबारी है, रूहों को पैदा करने वाला है। उसकी क्रिएशन हर वक्त जारी है और वो कभी बंद नहीं होगी। तो इस तरह से इस जमीन के ऊपर लाइफ शुरू हुई। खुदा ताला ने अपनी क्रिएशन पैदा करने से पहले, उसने, हम पढ़ते हैं अपनी किताबों में, कुरान शरीफ के अंदर और इस्लाम के अंदर, हर आदमी ये बात को मानता है कि खुदा ताला ने शैतान बनाया। शैतान पर्सोनिफाइड नहीं है। जिस तरह से इमाम और नबी जाहिर के अंदर एक बदन में आए, खुदा ताला का दूर अपने साथ लेके आए, वो नूरानी सिफतों वाले थे। इस तरह से शैतान मैनिफेस्ट न हुआ, मगर शैतानी फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो एक्चुअली किसी एक व्यक्ति, किसी एक इंडिविजुअल का नाम शैतान नहीं है, मगर शैतान की फोर्स है। इस फोर्स को खुदा की अपोजिट फोर्स कहते हैं। अगर खुदा की फोर्स को हम पॉजिटिव कहते हैं तो शैतान की जो फोर्स है वो नेगेटिव है। और खुदा ताला को क्रिएशन के लिए ये जरूरत पड़ी। अगर वो चाहता तो इसकी जरूरत न भी होती, लेकिन उसने इस तरह से बनाया कि 2 फोर्सेस है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। इन 2 फोर्सेस की वजह से उसने बैलेंस रखा। इसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। मैंने आपको अर्ज की कि इतनी बड़ी वजनदार जमीन ये स्पेस में इतनी जोर से भाग रही है, कोई इसको चेन नहीं, कोई वायर नहीं, कोई पिलर नहीं, कुछ नहीं, ये भाग रही है। और इस ग्रेविटी को हमारे पीरों ने कभी वो जमाने के अंदर 500-700 वर्ष पहले, जो अभन बुद्धू किस्म के, यानी बेचारे भोले भाले मगर अभन लोग थे, उनको जो कहते कि ग्रेविटी ये है कि जमीन और आसमान के दरमियान एक किस्म की पुलिंग पावर है या मैग्नेटिक पावर है, तो आप ये समझते हैं कि वो लोग समझ सकते हैं। तो हमारे पीरों ने ग्रेविटी जाहिर करने के लिए उन्होंने एक स्टोरी बनाई कि भाई एक बैल है, उस बैल के
एक सींग के ऊपर कभी इतना बड़ा एक गोला रख दो तो वो टिकेगा? नहीं टिकेगा। लेकिन पीरों ने कहा कि इस एक बैल के सींग के ऊपर बहुत बड़ा एक गोला अगर बैलेंस किया जाए तो इस तरह से खुदा ने इस जमीन के नीचे एक बैल रखा है कि ये सारी जमीन वो बैल के सींग के ऊपर बैलेंस की गई है। एक्चुअली ये समझाना चाहते थे ग्रेविटेशन को, लेकिन बैल के सींग के ऊपर रख के बैलेंस की गई, ये समझाया कि खुदा ताला ने जो ग्रेविटी बनाई और मैग्नेटिज्म बनाई, तो इस मैग्नेटिज्म के साथ जो ग्रेविटी चीज थी, इधर इसकी स्पीड है और उधर दूसरी तरफ सूरज की ग्रेविटेशनल पुल है हमारी अर्थ के सामने। दो चीजें हो गई, एक तरफ इसको सूरज खींच रहा है, मगर दूसरी तरफ ये इतनी स्पीड से भाग रही है कि सूरज की जो पुलिंग पावर है वो काम नहीं आ रही। आप एक स्टिक ले लो, एक लंबी सी डोरी, उसके नीचे कुछ भी एक वजनदार पत्थर बांध के तो उसको स्टिक को ऐसा करो तो वो पत्थर नीचे गिर जाएगा, लटकता रहेगा। लेकिन इसी स्टिक को आप ऐसा फिराना शुरू करो तो ये पत्थर आहिस्ता आहिस्ता स्टिक से दूर होता जाएगा। जितनी स्पीड बढ़ाओगे ये इतना दूर हो जाएगा। कभी बहुत ज्यादा स्पीड की है तो बहुत दूर हो जाएगा, मगर वो खंभा, वो जो तार या डोरा आपने बांध रखा है उसको दूर भागने नहीं देता। यही सूरज की पुलिंग पावर है। और दूसरी तरफ इसकी स्पीड की वजह से ये जमीन दूर नहीं भागती। अगर जरा सा भी सूरज की ग्रेविटेशनल पुल हमारी पृथ्वी के ऊपर जरा सा भी कम हो जाए, इतना छोटा सा भी कि वो सिंग के ऊपर जो बैलेंस किया हुआ है उसके अंदर बिल्कुल एक माइक्रोस्कोपिक इंच जितना, यानी माइक्रोस्कोपिक का मेरा मतलब है 1/10, 100 या 1000 ऑफ एन इंच जरा बैलेंस ऐसा हो जाए तो बैल के इस सिंगड़े के ऊपर से जमीन गिर पड़े, मतलब कि ये जमीन स्पेस में भाग जाए। तो ये दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एक खुदा की सिफत है, दूसरी भी खुदा की बनाई हुई है, मगर खुदा की ऑपोजिट सिफत है। इसी को हम शैतान कहते हैं। इसी को हमने दो और चीजों से नाम दिया, खैर और शर। हर खैर चीज, खैर कहते हैं अच्छी चीज को, भलाई को, वो खुदा की तरफ से आती है, और शर यानी खराबी जितनी भी है वो शैतान की तरफ से आती है। खुदा की ऑपोजिट फोर्स को शैतान कहा गया। शैतान की इस ऑपोजिट फोर्स को खुदा कहा गया, सॉरी शैतान कहा गया, और इसी को हमारे गिनानों में दैंत कहा गया। दैंत खुदा का दुश्मन, खुदा का ऑपोजिट। तो आपने दैंत को समझ लिया। हर जमाने के अंदर खुदा की तमाम क्रिएशन के अंदर दोनों चीजें हैं, खैर भी है यानी पॉजिटिव फोर्स भी है, शर भी है जिसको नेगेटिव फोर्स कहते हैं। खुदाई ताकत भी नूर की है, शैतान की भी ताकत है। इधर दैंत है, इधर मौला है। तो ये मौला और दैंत को समझने के बाद अब मैं आपको एक चीज कहूं कि 10 अवतार अब शुरू होते हैं। जब ये जमीन बनी, आसमान बना, पृथ्वी बनी, सब कुछ बना, लाइफ शुरू होने से पहले खुदा ताला ने ये दोनों फोर्सेस बनाई, दैंत को भी अपॉइंट कर दिया। अब इसकी ये सारी समझ जो मैंने आपको बताई है, पीरों ने एक स्टोरी बनाई। स्टोरी ये है कि जमीन आसमान पैदा करने से पहले अमरीकी एक फरिश्ता था। खुदा ने उसको बहुत ताकत दे रखी। उसने एक बड़ी दावत की। देखो पीरों की कमालियत, देखो कैसी कैसी मुश्किल चीजें स्टोरी में बयान कर दी। अमरीकी ने दावत की, तमाम फरिश्तों को बुलाया, मौला को भी बुलाया। मौला का उस वक्त नाम, अब भी वो विष्णु भी है, राम भी है, तो उस वक्त विष्णु था। विष्णु महाराज भी आए, सब लोग आए, मगर
جب یہ سب لوگ آئے تو امریکی اس نے یہ سوچا کہ یہ سب بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور بچے ہیں چھوٹے، وہ شور مچائیں گے، تو اس نے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دیا. اب کھانا جو بچوں کو کھلا دیا، اور جب یہ سب بڑے بڑے لوگ آئے، خاص طور پہ جو گیسٹ آف آنر تھے، تو اس میں ایک مہارشی تھا، وہ بہت بگڑا. بگڑنا چاہیے تھا وشنو کو، مگر بگڑ گیا. وہ ہمیشہ چھوٹے زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں. جب وہ بگڑ گیا، اس نے غصے سے کہا کہ تم نے اپمان کیا، ہم کو کھانے کے لیے بلایا اور اس سے پہلے تم نے بچوں کو کھلا دیا. اس نے اس کو بد دعا کی کہ تیرے کو 100 مدھم اوتار ملے، یعنی تیری کنڈیشن ایسا سمجھ لو کہ 100 ڈگری روحانی عالم سے لو ہوتا ہے. اس کا مطلب ایسا کر لو. مگر اس طرح کی سٹوری ہے کہ اس کو 100 مدھم اوتار یعنی نیچ اوتار ملے جس میں تجھے دکھ ملے، ایسے اوتار ملے. بیچارہ ڈر گیا، کھانا پینا تو بگڑ گیا، محفل بگڑ گئی، بہت گھبرایا، بہت کچھ معافی مانگی، بہت گریہ زاری وغیرہ کی. گیا وشنو کے پاس. وشنو نے کہا اچھا چلو مہارشی کے پاس چلے. گئے مہارشی کے پاس. مولا کو دیکھ کے کھڑا ہوا. مولا نے کہا کہ بھائی اس بیچارے سے گناہ ہو گیا، معافی مانگتا ہے، بخش دو. اچھا مولا، تیری خاطر میں 20 معاف کر دیتا ہوں. 20% کم ہو گیا، ڈسکاؤنٹ ملا. ساری سٹوری بڑی اچھی ہے، اور سٹوری کے تمام جتنے بھی ایکٹس ہیں، سٹوری میں جتنے بھی پاتر ہیں، اس کے اندر سگنیفیکینس ہے، اس میں سمجھنے کی فلسفی ہے. آج ٹائم نہیں ہے اس کا، کبھی سمجھائیں گے انشاءاللہ. تو یوں کرتے کرتے الگ الگ فرشتوں کے پاس جا کے مولا نے اس کو معافیاں دلائی. اس نے کہا مہارشی دوسرا آیا، مہارشی کی پاس جا کے اس نے کہا کہ میری خاطر سے کچھ کر دو. یوں کرتے کرتے باقی 20 رہ گئے، 80 معاف ہو گئے. اب کوئی اس لائق اس درجے کا نہیں تھا کہ جس کا کوئی اثر امریکی کے اوپر مہارشی کے اوپر پڑ سکے. تو مولا نے اس کو کہا کہ دیکھو ہم ایسا کریں، چلو ہم کھیل بنائیں. کھیل یہ بنائیں کہ 10 اوتار تو لے، 10 اوتار میں لے. اس کو دینت بنایا اور خود مالک تو ہے ہی. اس کو کہا کہ تو میرا اوپوننٹ بن جا. ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ریکریشن کلب میں آئے. مشنریوں کی مہمانی تھی، سب کی رپورٹیں پوچھی، حال پوچھے. مولا نے فرمایا مشنریوں کو دیکھا تم ہر سنڈے ادھر جمع ہوا کرو. الوازین تم لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. مولا فرمایا کہ تم ہر سنڈے کو اکٹھے ہو اور 2 گروپ بن جاؤ. ماما فرمایا 2 گروپ بنو اور تم ڈیبیٹ کرو. تم اس کو نیچے پاڑنے کی کوشش کرو اور یہ گروپ اس کو نیچے پاڑنے کی کوشش کرے. ایک دوسرے کے ساتھ خوب ڈیبیٹ کرو، مگر دیکھو باہر نکل کے ایک دوسرے کی دشمنی نہیں کرنا، کیونکہ یہ تو محض ایک ڈیبیٹ اور کھیل تھا. تو مولا نے بھی ایک کھیل رچایا، 10 تو لے 10 میں لیتا ہوں. اور ادھر سے یہ 10 اوتار کی بات شروع ہوئی. اس کو دینت بنایا. دینت کا کام کیا ہے؟ اپوزٹ کرنا. آپ یوں سمجھ لو کہ سوکر کا ایک میچ ہے تو ہر پارٹی یہی چاہتی ہے کہ میں دوسرے کے خلاف ایک گول کر ڈالوں. بس یہی تھی ایک گیم سوکر کی بنا ڈالی مولا نے، ایک ہاکی گیم بنا ڈالی، کچھ ایک کھیل بنا دیا. اور اس طرح سے کہ میں پہچانا جاؤں کس طرح سے کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں بہت اچھا کھلاڑی تھا، لیکن کھیل کروں تو پتہ لگے نا کہ میں اچھا کھلاڑی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو چھپا ہوا، تم مخفین، تم تو کنزن مخفین، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. تو اس نے یہ کھیل بنایا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے. تو ہر کریشن کی چیز کے اندر جتنی بھی چیزیں کریشن میں، اس میں 2 چیزیں ہیں اپوزٹ ہیں، نیگیٹو پازیٹو. جب وہ پہلا امیبا دنیا کے اندر پیدا ہوا تو اس کے اندر بھی نیگیٹو پازیٹو فورسز تھیں. ہر ایٹم کے اندر الیکٹرانک بھی ہیں، الیکٹرونز بھی ہیں، پروٹونز بھی ہیں.
पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज बॉडीज हैं। तो ये बढ़ते 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 स्टेज बाय स्टेज इवॉल्व होते होते हर स्टेज के ऊपर दैत भी था, मौला भी था, हर स्टेज के ऊपर। यहां तक के एक बहुत बड़ी स्टेज जिसको 4,32,000 बरस लगे, एमीबा से लाइफ शुरू होके मच्छी तक 4,32,432,000 ईयर्स लगे, और इसके अंदर करोड़ों स्पेसीज निकल गए। और वो जमाने को, हालांकि कलयुग, इसके पहले द्वापर, इसके पहले त्रेता और उसके पहले सतयुग, ये 4 युग हैं। मैं आपको सिर्फ 4 युग ही की स्टोरी सुना रहा हूँ। और ये 4 युग से पहले 4 कल्प थे, और 4 कल्प से पहले 3 करण थे, और इसका हिसाब करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, कलम काम नहीं आएगी। तो दीनदारो, इस तरह से ये एमीबा से निकल के जब इवॉल्व होके 4,32,000 बरस के बाद एक ऐसा बड़ा मगरमच्छ की तरह का एक ऐसा फोर्स, ताकत वाला कोई जानवर था, उसको दैत का पाठ करना था, और उस दैत का नाम रखा गया शंखासुर। शंखासुर कहते हैं शेल को, ये जो समुद्र में से शेल निकलते हैं ये शंखासुर हैं। शंखासुर ऐसा जानवर है कि छोटी मोटी बहुत सी मछलियां भी खा जाता है, उसमें से ऐसी केमिकल निकलती है पानी के अंदर कि जहाँ ये शेल्स होते हैं वहाँ छोटी छोटी मछलियां आती ही नहीं, आती हैं तो मर जाती हैं। तो समुद्र के अंदर इतने बहुत शेल्स पैदा हो गए कि मछलियां खत्म होने लगी। ये जो छोटी छोटी मछलियां, इनके अंदर जीव थे, ये रूहानियां खुदा ने बनाई थी, ये जीव खुदा ने बनाए थे, वो नेक जीव थे, और ये तो एक बदमाश के रूप में, दैत के रूप में आया था। तो वो जो जीव थे, देखो याद रखो दीनदारो, हमको कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि तमाम जितनी भी लाइफ है वो खुदा की इबादत करती है। अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया है कि मैंने अपनी अमानत को दरख्तों के सामने, यानी वेजिटेशन के सामने पेश किया, तो उन्होंने अपनी नाकाबिलियत, डिसेबिलिटी जाहिर की। मैंने पहाड़ों के सामने पेश किया तो उन्होंने भी कहा कि या मौला हम इस लायक नहीं। मैंने पानी के सामने पेश किया तो उसने भी कहा कि या मौला हम इसके लायक नहीं। तो क्रिएशन में सबके सामने जब मैंने अपनी एक अमानत पेश की तो किसी ने भी उसको कबूल नहीं किया। खुद को हम्बल समझ के, उस दर्जे के लायक न समझ के मौला को कहा या मौला हम इसके लायक नहीं। लेकिन इंसान ने उसको फौरन कबूल कर लिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान जो है वो बड़ी क्विक नेचर का है, जल्दबाज है, सोचे समझे बगैर ले लेता है, और इंसान ही सबसे ज्यादा दुखी है। तमाम सृष्टि को देख लो, खुदा ताला खुद कहता है कि तुम अपनी चारों तरफ देखो, है कोई ऐसी चीज के जो अपने पैदा करने वाले के कायदे के विरुद्ध चल रही है? दरख्तों का जो झाड़, वनस्पति, घास, वेजिटेशन वगैरह का खुदा ने जो लॉ बना रखा है वो उस लॉ के ऊपर चल रहे हैं। जानवर अपने लॉज पे चल रहे हैं, पहाड़ अपने लॉज पे चल रहे हैं, हवा का भी एक लॉ है, आग के भी लॉज हैं, पानी के लॉज हैं, हर शय के लॉज हैं, और तमाम चीजें खुदा के बनाए हुए कानून के ऊपर चल रही हैं। सिर्फ एक हजरत इंसान है कि जो अपनी मर्जी से ऊंचा नीचा कर देता है, खुदा की बनाई हुई चीजों को बिगाड़ रहा है। तो उस जमाने के अंदर जो जीव थे उनके अंदर एक दैत पैदा हो गया। उस दैत का नाम था शंखासुर। शेल, छोटी छोटी मच्छियां जो जीव थी, उन्होंने खुदा से पुकार की, हे मौला इसने तो हमारी लाइफ खराब कर दी, जिंदगी हराम कर दी। तो मौला ने अपने आप को मच्छी के रूप में, फिश के रूप में जाहिर किया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का वो लेक्चर जो 1945 में दार इस सलाम की मिशन कॉन्फ्रेंस में हुआ, वो पढ़ो, यानी मैं वाज़ीन को कहता हूँ जरूर पढ़ो। उसके अंदर हजरत इमाम फरमाते हैं कि when there was nothing, यानी मच्छी के अंदर अपनी ताकत को जाहिर करके शेल को खत्म किया। ये ऐसी कोई स्पेशल किस्म का मच्छ था कि जिसने तमाम शेल्स का खात्मा कर दिया और छोटी छोटी मच्छियों आराम और सुख दे दिया।
जमाना बहुत लंबे टाइम तक चला. Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 500, recorded by Mehendi Momi. तो जब ये जमाना बहुत लंबे टाइम तक चला, सुख को, राहत को, आबादी को, खुशियों को हम रोशनी और नूर समझते हैं, जैसा कि दिन है. दुख को, बेचैनी को और सुख को, पेन को, दर्द को, गम को हम लोग रात के साथ, अंधेरे के साथ मिसाल देते हैं. जब सुख शांति होती है तो ये दिन की तरह है. दुखों को रात कहा. अरबी जबान के अंदर रात को जुल्मत भी कहा गया. जुल्मत अंधेरे को कहते हैं, जुल्मत बेअदली को कहते हैं, इनजस्टिस को कहते हैं, दुख को भी कहते हैं. तो ये जो मच्छलियां थी, जो जीव मोमन जीव थे, मच्छलियां छोटी छोटी थी, इनको कई नस्लों तक, सैकड़ों वर्षों तक जब ये जुल्म बढ़ते गए, दुख बढ़ता गया, ये तमाम सैकड़ों वर्षों का जो पीरियड दुख का था, इसको रात के साथ तशबीह दी गई है. खुदा ताला ने अपने ताकत से एक जबरदस्त मच्छी को जाहिर किया और इस मच्छी ने आके तमाम उन लुच्चों को, बदमाशों को, चोरों को, दहितों को खत्म कर दिया. यानी सुख शांति फैला दी. दुखों की रात चली गई, सुखों का दिन उग आया. 4,32,000 बरस का ये पीरियड शुरू हो गया, खत्म हो गया और इसके बाद एक दूसरा पीरियड शुरू हुआ. हर 4,32,000 बरस के बाद इस तरह का एक पीरियड आता रहा कि उस पीरियड के अंदर रात भी आई, दिन भी आया. ये जो दुखों की रात थी वो भी बड़ी लंबी थी. जीवों के ऊपर, रूहानियों के ऊपर, मोमनों के ऊपर, चाहे वो मोमन बैक्टीरिया होवे, चाहे वो मोमन गधे होवे, चाहे वो मोमन बैल होवे, चाहे वो मोमन पंछी होवे, चाहे वो मोमन इंसान होवे. मोमन का मतलब खुदा ताला के कानून पे चलने वाला. तो जानवरों के अंदर भी मोमन है. तो इन मोमिनीन को जब दुख मिला तो खुदा ने मच्छी का अपीयरेंस लेके और वो जो संखासर था उसको मार दिया. रात खत्म हो गई, दिन उगाया. उस वक्त मजहब जो था, यानी खुदा की इबादत वगैरह, तो उसको गोल्ड एज हमारे पीर सदरुद्दीन ने कहा. गोल्ड एज वो सोने का जमाना था, खालिस जमाना था. और उस जमाने के अंदर 100% लोग, यानी वो जमाने के जो जीव थे वो इबादत करते थे. मगर जब वो दैत जाहिर होके रात खत्म हो गई, वापस दिन निकला, तो उस वक्त 2.5% गुनाह हुए. 97.5% फिर सदरुद्दीन ने इक्वेशन बनाई इस तरह के 20 में से आधा टका गुनाह पाप नाफरमानी और 19.5 हिस्से 20 में से, यानी 97.5% दुनिया के अंदर इबादत बंदगी और खुदा के फरमान पे चलने की बात थी. 4,32,000 बरस के बाद फिर ऐसा ही एक रात का, लंबी रात का जमाना आया कि जो हजारों साल तक वो चली. जब मोमन बहुत दुखी हो गए तो फिर खुदा ताला ने देखा कि ये अभी मेरे मोमनों को कौन दुख देता है, तो उसका नाम था मधु कीटक. मधु कीटक कहते हैं इंसेक्ट ईटर. मधु कीटक दैत का नाम था, उसका मतलब है इंसेक्ट ईटर. क्योंकि एवोल्यूशन बढ़ गई, मच्छियों में से इंसेक्ट जो जमीन के ऊपर वगैरह रहते हैं वो जारी हो गए. तो ये जो इंसेक्ट ईटर का एक ऐसा जिस्म था उस जमाने के अंदर कि जो वो जमाने के भक्तों को, मोमनों को, जीवों को जो खुदा ताला की इबादत करते थे, उनको जब बहुत दुख देने लगा तो खुदा ने फिर अपने नूर की, अपनी ताकत का इजहार किया. और वो इजहार टॉर्टॉइज की शक्ल में था. एक बहुत बड़ा टॉर्टॉइज यानी काचबा पैदा हुआ. इस काचबा ने ये तमाम जो इंसेक्ट ईटर्स थे उन सबको मार डाला और दुनिया के अंदर वापस सुख शांति हो गई. तो ये दूसरी रात का, जुल्मत का पीरियड खत्म होके वापस दिन पैदा हुआ.
तो उस जमाने के अंदर जब सुख शांति हो गई, आहिस्ता 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 बदियां बुराइयां बढ़ने लगी। एक ऐसा आदमी यानी एक ऐसा जीव फिर पैदा हुआ तीसरी दफा, और तीसरी दफा ये जो पैदा हुआ तो उसका नाम था मोर दानव। तीसरा जो दैत्य था उसका नाम था मोर दानव। मोर दानव कहते हैं बर्ड किलर। बर्ड किलर को मोर दानव कहते हैं। और बर्ड किलर के सामने मौला ने अपने नूर को जो जाहिर किया उसका नाम था व्राह। व्राह मतलब उसका डिक्शनरी के हिसाब से हॉग होता है, HOG। ये सुअर की एक फैमिली है, मगर एक्चुअली व्राह का मतलब मैमल, नॉट डेफिनेटली और सर्टनली हॉग। एनी मैमल फैमिली के जो आज हमको उसका पता नहीं है, लेकिन वो मैमल थे। देखो किस तरह से स्टेज बाय स्टेज एवोल्यूशन बढ़ रही है। तो उसके सामने ये जो बर्ड किलर था, तो ये जाहिर हुआ कि तीसरे पीरियड के अंदर जो 4,32,000 बरस का एक पीरियड है, ऐसे 10 पीरियड है, तो तीसरे पीरियड में बर्ड्स पैदा हो गए थे। तो जो बर्ड्स का किलर था उसको इसने मार डाला, यानी मौला ने वापस तीसरी दफा रात का जो हजारों साल लंबी दुख की बात थी पीरियड था वो खत्म हो गई और फिर से सुबह हुई, सुख शांति हो गई। तो चौथी दफा भी ऐसा जब हुआ तो चौथी दफा जो जीव बहुत दुखी हुए उनको मारने वाला जो दैत्य था उसका नाम था हरनाकंस। हरनाकंस कहते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ वीक। हरण कहते हैं एक्चुअली डियर को। डियर बेचारा कमजोर जानवर है। तमाम बड़े बड़े खाने वाले जो जानवर हैं, शेर हैं, चीते हैं, वो हरण ही के पीछे लगते हैं। तो हरण बेचारा वीक है, उसको मारने वाला उसका नाम था हरनाकंस। तो हरनाकंस जो था उसकी स्टोरी आज डॉक्टर शिराज ने डिस्प्ले करके बताई, कुछ फोटोज भी बताई। तो किस तरह से हरनाकंस को मारा। हरनाकंस भी इबादत बंदगी करता था, विष्णु को राजी किया और उसके पास से प्रॉमिस ले लिया कि मैं मरूं ही नहीं। तो इसने डिटेल बनाई। विष्णु को कहता है कि मुझे प्रॉमिस कर, मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। कहा कबूल। न ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। विष्णु ने कहा कबूल। न मैं किसी हथियार से मरूं, न किसी जानवर से मरूं, न किसी इंसान से मरूं। कहा कबूल। न रात को मरूं न दिन को मरूं। कहा कबूल। अब ये समझ बैठा कि मैंने तो चारों तरफ से ऐसी दीवार बांधी के मौत घुस ही नहीं सकती, मगर मौला का सामना कोई कर सकता है। मौला ने शेर का अवतार लिया। खुदा का जो नूर था वो उस जमाने के अंदर जो लाइफ थी, आला से आला दर्जे की जो लाइफ थी, उस लाइफ के हिसाब से खुदा ने लायन का एक स्वरूप लिया जो आधा नीचे से इंसान था और ऊपर से यानी दिल के ऊपर से वो शेर की तरह था। हरनाकंस को पकड़ा और दरवाजे के ऊपर बैठा, कुर्सी रख के मौला एक पांव बाहर रखा, एक अंदर रखा, और न अंदर है न बाहर है। डाला अपनी लैप में, न नीचे है न ऊपर है, अधर है। हथियार से नहीं मारा तो नाखून से उसका पेट फाड़ दिया। और वक्त शाम का था, न दिन थी न रात। तो हरनाकंस को इस तरह से बर्बाद किया। और चौथी दफा हजारों बरसों का जो दुख का पीरियड, जो रात थी ना, उसको खत्म करके वापस दिन उगा दिया, यानी फजर हुई, खुशी का मौका आ गया। और खुदा ताला के जो भगत मोमिनीन थे उस जमाने के अंदर जो जीव थे उन बेचारों को सुख मिला। तो ये 4 पीरियड 4,32,000 बरस के जो थे जिंदारो, इसको कहते हैं सतयुग। इसके अंदर मौला के नूर को 4 दफा जाहिर होना पड़ा। अब वो जमाने के अंदर जमीन में से जो स्पेसीज निकलती थी उस लाइफ का मैं आपको हिसाब बताऊं तो हमारे पीरों ने कहा कि 99 करोड़ी जंक थे। इसको संस्कृत में यक्ष कहते हैं। ये यक्ष क्या है? इंसेक्ट बैक्टीरिया, इसको यक्ष कहते हैं। इसकी जो स्पेसीज थी, टोटल पॉपुलेशन नहीं, इसके जो कबीले थे, ग्रुप्स थे, स्पेसीज थी,
वो 990 मिलियन स्पेसीज थी बैक्टीरियाज और इंसेक्ट्स की। साइंस को अभी तक इस बात का पता नहीं है कि वो स्पेसीज की तादाद कितनी थी। ये काउंटिंग पीर ने बनाई है। 990 मिलियन स्पेसीज ऑफ बैक्टीरियाज एंड इंसेक्ट्स। उसके अंदर जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह, वो लाइफ के जो लाइफ इन वाटर प्रोमिनेंस हुई थी। इसके अंदर से सवाल पैदा होता है, शायद कोई स्कूल का लड़का पूछ बैठे, हाउ डिड ही नो दिस 990 मिलियन स्पेसीज। तो देखो दीनदारो, इमामों और नबियों की जो ताकत है वो रूहानी ताकत होती है। वो लोग जो कुछ कहते हैं वो अपनी नूरानी ताकत से कहते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम एक दिन बैठे कुछ काम कर रहे थे, एक यहूदी निकला। यहूदी हमेशा छेड़ता रहता था मौला को कि किसी तरीके से मौला को मैं डाउन करूं। तो कुछ लोग और भी थे, आगे कहता, या अली, मैंने सुना कि तुम बहुत इल्म वाले हो, तो मुझे एक बात पूछो। मौला पूछ। कहता, या अली, मेरे को बताओ कि कौन से जानवर हैं जो अंडे में से निकलते हैं और कौन से जानवर हैं कि जो माँ के पेट में से यानी डायरेक्टली वूम्ब में से निकलते हैं। मौला अली काम करते करते नजर नीची ही थी और उसको इसी तरह से फरमान किया कि जो जानवर जिनके कान बाहर दिखते हैं, नजर आते हैं, वो माँ के वूम्ब में से पैदा होते हैं। जिनके कान नहीं दिखते वो अंडे में से पैदा होते हैं। बोला, किसी साइंटिस्ट ने कहा है आज तक ये बात? और सारी दुनिया में घूम जाओ, मौला की इस बात को जो 1400 साल पहले कही हुई है, आज देख लो, किसी भी जगह देख लो। मैंने एक दफा बेट्स देखे, मेरे खुद के घर के गार्डन में बेट्स आते थे। वो उड़ते थे और उनके कान भी बड़े हैं, चूहे जैसा मुंह है उनका। तो मैं ख्याल करता था कि या मौला, तूने कहा कि जिनके कान बाहर होते हैं वो अंडे में से निकलते हैं, तो ये अंडे कहाँ रखते होंगे? अभी वो बहुत मुद्दत तक रहे। बाइनोकुलर लेग के मैं उनकी स्टडी करता रहा। वो ऊंधे लटकते हैं दरख्तों के ऊपर। जो बैट्स है ना, उनके पीछे 2 हुक्स होती हैं। वो झाड़ के साथ हुक्स लगा के ऊंधे लटकते हैं, पंख बंद कर देते हैं और वही उनकी मेटिंग होती है। इसी तरह ऊंधे लटकते लटकते इसी तरह से पड़े रहते हैं और आखिर आहिस्ता आहिस्ता उनके वूम्ब में से बच्चा निकलता है और वो बच्चे की भी पहले हुक्स निकलती है, ऊंधा निकलता है। आदमी का तो बच्चा पैदा होता है, सिर पहले निकलता है। तो कोई बहुत ही आदमी बदमाश होवे, किसी की नहीं सुने, तो हम उसको कहते हैं कि तो ऊंधो पैदा थी है, यानी पहले पाँव निकले हैं। तो ये जो बैट्स हैं, इनके बच्चे बाहर निकलते हैं, ऊंधे निकलते हैं और इनकी जो हुक्स होती हैं वो झाड़ को पकड़ लेती हैं। माँ हट जाती है और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनको फीड करती है। इस तरह से ये देखो खुदा ताला की कुदरत। लेकिन अली अलैहिस्सलाम ने, हमारे मौला ने 2 फिक्रों के अंदर, 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर साइंस की कितनी बड़ी बात कह दी। सब पीरों ने भी जो कुछ कहा है वो अपनी उसी नूरानी ताकत के हिसाब से कहा है। तो दिनदारो, ये सतयुग का पीरियड 17,28,000 बरस का पूरा हुआ। इसमें 4 दफा मोमिनों के ऊपर, जीवों के ऊपर दुख पड़े जो हजारों साल तक चलते रहे। और ये जो दुख का जो पीरियड था उसको राहत कहा गया है। तीसरा पीरियड जब शुरू हुआ तो ये पीरियड त्रेता युग का था। त्रेता युग के अंदर इसी तरह का एक दैत्य पैदा हुआ। इस दैत्य का नाम था बल, राजा बल। बल कहते हैं स्ट्रॉन्ग को, जो ताकत वाला होता है। वो छोटे मोटे सबको मारता रहता था, बहुत दुख देता था। हो सकता है कि ये इंसान के रूप में, क्योंकि सामने इमाम का जो अपीयरेंस जो था तो वो वामन था। और वामन कहते हैं वो मिसिंग लिंक है जिसको आज साइंटिस्ट ढूंढ नहीं सके, बिटवीन चिंपांजी एंड मैन। उसका नाम पीरों ने वामन रखा। इंग्लिश में वामन कहते हैं ड्वार्फ को, जो छोटे कद का हो गए, बहुत छोटा था। जैसा कि आप समझ लो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने ये गोलायत था, वो कितना बड़ा था, बहुत बड़े साइज का था। आज डॉक्टर शिराज ने उसकी हमको फिल्म वो स्लाइड भी बताई
तो ये जो ड्वार्फ थे, और वो तो बहुत बड़ा ताकत वाला ऊंचा था। रसूल अकरम की हदीसों में से हमें कुरान शरीफ की बाज चीजों का पता लगता है जो कुरान में नहीं, यानी कुरान की चीज है, एक्सप्लेनेशन हदीस में है। अल्लाह ताला फरमाया आद और समूद और उनकी दूसरे पहले लोगों की हालतों का जिक्र कर इनको, यानी स्टोरी सुना। रसूल को कहा कि तुमने कभी उनको देखा ही नहीं कि वो कितने ऊंचे और कितने बहादुर थे। तो रसूल अकरम को पूछा गया तो रसूल फरमाया कि उस जमाने के अंदर उनका कद जो था, हाइट जो थी 40 यार्ड की थी, 120 फीट। आज हम इमेजिन कर सकते हैं कि 120 फीट का आदमी या कोई जानवर होगा, हो सकता है। तो उस जमाने के अंदर ये जो बर्ड राजा था वो गरीबों कमजोरों को बहुत दुख देता था, और वामन अवतार लेके, जिसको हम एप भी कहते हैं, और सच पूछो तो वो फर्स्ट ह्यूमन रेस का सरदार था, उसने बर्ड को मारा और उस जमाने के जो जीव थे उनको सुख शांति देके उनकी दुखों की रात पसार कर दी और दिन उगा दिया। छठी दफा यानी विजय त्रेता युग के अंदर सेकंड टाइम, मगर टोटल 6th टाइम फिर इसी तरह का एक दैत्य पैदा हुआ, खुदा का दुश्मन लोगों को सताने वाला हुआ, और उस आदमी का नाम उसको कहते हैं हम लोग जरासिंह। उसको हमारे गिनानों के 10 अवतार के हिसाब से कहा गया जरासिंह। जरासिंह एक ऐसा जानवर था कि जिसके 1000 टेंटेकल्स थे, 1000 हाथ होंगे, पांव होंगे। आप देख लो, एक स्पाइडर है या एक बिच्छू है जिसको हम इंग्लिश में स्कॉर्पियन कहते हैं, तो उस जमाने में हो सकता है कोई ऐसा जानवर हो कि जिसके 1000 टेंटेकल्स थे। ये जो जरासिंह था ये भी बड़ा दुख देने वाला था। जैसे जैसे जमाना बदल गया, जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, जैसे जैसे जीव बढ़ते गए, तैसे तैसे दुख भी बढ़ते गए और राहत घटती गई, पाप बढ़ता गया, मजहब घटता गया, सवाब घटते गए, गुनाह बढ़ते गए। तो इसको फिर मौला ने अपना एक स्वरूप लिया, खुदा का नूर जाहिर हुआ और इसका नाम था फरसी राम। फरसी कहते हैं एक्स को। ये वो केव मैन होना चाहिए कि जिसने सबसे पहले फ्लिंट यूज किया। इसने एक फरसी बनाई और उसके टेंटेकल्स जो थे इससे काट काट के उस दैत्य का नाश किया, जीवों को सुख दिया, दुखों की रात दूर हो गई और सुखों की सुबह शुरू हो गई। इस वक्त 7th टाइम, लेकिन विजय त्रेता युग में 3rd टाइम एक ऐसा और दैत्य पैदा हुआ कि जो और भी ज्यादा ताकत वाला और बहादुर था, और इसका नाम था रावण। रावण कहते हैं प्राउड को, क्रूअल को। ये इसका लिटरेरी मीनिंग है रावण का, क्रूअल एंड प्राउड। इसके सामने राम ने अपनी अपीयरेंस की, और राम का मतलब होता है अदल करने वाला, जस्ट या सिंसियर, जो सच्चा होवे, अपने कौल के ऊपर खड़ा रहे। इसका राम का लिटरेरी मतलब ये है। मैंने आपके सामने तमाम दैत्यों और अवतारों का लिटरेरी मतलब भी कर दिया है। तो राम ने रावण का नाश किया, दुखों की रात दूर हो गई, सुखों की सुबह शुरू हो गई। इस विजय त्रेता युग के अंदर बर्ड्स, फ्लाइंग क्रिएचर्स वगैरह, जिसको हमारे पीरों ने 56 करोड़ी मेघमाड़ा कहा। ये जो मेघमाड़ा थे इनको बर्ड्स और फ्लाइंग क्रिएचर्स के साथ रखा। इनकी 560 मिलियन स्पेसीज हुई उस जमाने के अंदर, और अभी टोटल एरिया जो दुनिया का था वो इतना नहीं था कि जितना आज है, उस वक्त कमती था। और ये सिल्वर एज कही गई, ऊपर की गोल्ड एज थी, ये सिल्वर एज थी कि जिसके अंदर 25% सिन थे, गुनाह होते थे, 75% इबादत और नेकियां होती थी। तो ये 2 युगों को टोटल हुआ 30,14,000 बरस, 3,14,000 ईयर्स। अभी त्रिजय द्वापर युग में इसी तरह से एक दैत्य पैदा हुआ, उसका नाम था
कंस, कंस यानी उसको इंग्लिश में कंसा कहा गया, ये एन है, और कंस कहते हैं कुश में से ये चीज निकली, मारने वाला, किलर। और ये कंस ऐसा था कि उसने अपनी सगी बहन के 7 बच्चों को मार डाला, बड़ा जालिम था। तो इसके सामने खुदा का नूर कृष्ण के अंदर जाहिर हुआ, और कृष्ण कहते हैं डिप्लोमेट को। वर्ड कृष्ण का मतलब है चालाक, होशियार, डिप्लोमेट। कृष्ण का एक और मतलब भी है, और वो है करसन यानी टिंटेड, उसका रंग जो था डार्क था। तो कृष्ण ने कंस का नाश किया, और ये 8वीं दफा दुनिया के अंदर रात का पीरियड खत्म होके वापस दिन सुखों का उगा। इस त्रिजय द्वापर युग के अंदर कॉपर एज कही पीरों ने इसको, और इस कॉपर एज के अंदर 50% गुनाह होते थे, 50% नेक काम होते थे। और इस जमाने के अंदर 32 करोड़ किन्नर हुए, 320 मिलियन स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, लाइफ ऑन ग्राउंड प्रोमिनेंट। उस पहले जमानों के अंदर पानी के अंदर लाइफ ज्यादा थी, दूसरे जमाने के अंदर हवा के अंदर ज्यादा लाइफ थी, प्रोमिनेंट थी, तीसरे टाइम के अंदर जमीन के ऊपर लाइफ प्रोमिनेंट हो गई। और ये वो वक्त था दीनदारों कि जब जमीन के अंदर फड़फड़ादी वेजिटेशन वगैरह हिसाब बिगड़ की हुई। और देखो पीरों ने एक और हमको कमाल की बात कही है, और वो ये है कि 3 बिलियन, या ऐसा कहूं 3039,132,000 वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन। अभी तक साइंटिस्टों ने ये फिगर हमको नहीं बताया। इसको हमारे पीरों के गिनानों में आधार भार वनस्पति जो कहा, तो आधार भार वनस्पति मीन्स 339,132,000 वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन। चौथे कल युग के अंदर, द्वितीय त्रेता युग के अंदर 9th टाइम एक ऐसा दैत्य जिसका नाम था दुर्योधन। ये दुर्योधन कहते हैं लिटरेरी मीनिंग में विकेट, बदमाश, लुच्चा, क्रूअल। इसके सामने श्री बुद्ध अवतार, जिनको बुद्ध कहते हैं वाइज को, कृष्ण के टाइम में हुआ, लेकिन मरा ये बुद्ध के टाइम में, पांडवों ने इनको मारा, तो दुर्योधन का नाश किया। चौथे कलयुग के अंदर दैत्य कालिंगा है। कालिंगा कहते हैं कीचड़ को, जो दगा फरेब करे उसको कालिंगा कहते हैं। कालिंगा का लिटरेरी मीनिंग है कीचड़, चोर, सिनर। और इसके सामने अली है। अली का मतलब हाई, ऊंचा, महान। तो ये जो चौथे युग के अंदर ये जो दैत्य कालिंगा है जिंदारे, वो अभी तक जाहिर नहीं हुआ। ये 10वां नकलंकी अवतार, निष्कलंकी कहते हैं, कि जिसमें कोई ऐब न होवे। ये सुबहानहू ताला की सिफत है, अल्लाह का वो नूर कि जो तमाम जमाने के अंदर उतरता चला आया, अपीयर होता रहा, वो अली के अंदर अपीयर हुआ। और इस जमाने के अंदर कलयुग बैठा, उसको अभी तक लगभग 7000 बरस हो गए हैं। ये 7000 बरस के अंदर 36 करोड़ मोमन हुए, उनमें से 12 करोड़ मोमन पास हो गए, जो पीर सदरुद्दीन की नूर के साथ लगे। और ये जो वक्त है, ये 75%, 75,000, 7000 बरस पीर सदरुद्दीन तक, उसमें 75% गुनाह रहे, 25% नेकियां इबादत रही। लेकिन पीर सदरुद्दीन के बाद अब जो टाइम हम पसार कर रहे हैं, जिसको हम आज फड़तार वेला कहते हैं, इसके अंदर 97.5% गुनाह है और 2.5% नेकियां हैं, जो टाइम अभी हम पसार कर रहे हैं। इसलिए हमको एक्सचेंज रेट बढ़ गया हमारा, इतने बहुत। जब इन्फ्लेशन आ गई
तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया, 1 करो तो 1.25 लाख का सवाब मिलता है। तो दीनदारों, इस जमाने के अंदर जिसमें से आज हम पसार हो रहे हैं, दैत कालिंगा के साथ लड़ेगा। अभी ये जो वक्त हम पसार कर रहे हैं ये रात का वक्त है, क्योंकि दुख गुनाह बहुत है, लोगों के अंदर बेचैनी बहुत है, लोग दुखी है, फैमिली का स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है और दिन ब दिन दुख बढ़ते जाएंगे। मैं गए 5-6 साल से सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ गया हूँ, मैंने 79 से 6 बरस हुए, मैंने ये चीज एडॉप्ट की कि जमाने के अंदर जहाँ भी घूमूं मैं वाजें करता रहता हूँ और उन वाजों के अंदर मैंने कहा है, पीरों के गिनानों, इमाम के फरमानों और मुलाकातों में से जो कुछ भी मुझे मिला, मैंने जमात को अर्ज की कि दिन ब दिन गुनाह बढ़ेंगे, नेकियां घटेंगी, तो क्या होगा? दुख बढ़ेंगे, तकलीफें बढ़ेंगी, व्याधि चिंता बढ़ेगी, नर्वस टेंशन बढ़ेगी, मन में शांति नहीं रहेगी। ये दिन ब दिन बढ़ते रहेंगे। रात सख्त हो रही है और 125 बरस ऐसे ही निकलेंगे और 130 ईयर अभी तक हमको पसार करने हैं। मौला अली जब वो दैत कालिंगा को मारेगा उसमें अभी तक 125 बरस से ज्यादा है। दुनिया और भी खराब होगी। हजरत इमाम का एक फरमान याद करो, ये फरमान साहब ने दारुसलाम में भी किया। 58 में मौला जब आए इमाम बन के, सेकंड मुलाकात के अंदर साहब ने बच्चों को कहा कि तुम्हारे बाप दादाओं को दुनिया के अंदर जो तकलीफें दुख पड़े उससे ज्यादा तुमको दुख पड़ेंगे। फरमाना ये मौला फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि दुखों के सिवा तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें आराम के थोड़े से साइकिल और राहत के सामान मिलेंगे, लेकिन दुख बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये रात का जमाना है, गुनाहों की जिंदगी है। 2.5% ही इबादत है, 97.5% गुनाह है। इसके सामने प्रोपोर्शन भी दुखों का ज्यादा है, गुनाहों का ज्यादा है। दैत कालिंगा की फोर्सें बढ़ती जाएंगी। दैत कालिंगा के ऊपर मेरी बहुत सी वाज़ें हैं। ये दैत कालिंगा बहुत चैन चाड़े करेगा, लोगों को बहलाए फुसलाएगा, और उसके लिए पीरों ने तो बहुत कुछ कहा। दैत कालिंगा के ऊपर वाज नहीं हो सकती आज, मगर थोड़ा सा आपको कहूँ कि ये दैत कालिंगा कौन है। जैसे कि खुदा ताला एक पर्सन के अंदर खुद को लिमिट नहीं कर लेता, वो अपने नूर की ताकत एक पर्सोनिफाइड शक्ल के अंदर जाहिर करता है। इसी तरह से ये दैत कालिंगा की भी फोर्स है, वो किसी हालत में जाहिर होती है। कम्युनिज्म जो है ये दैत कालिंगा है, कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म दैत कालिंगा के हाथ में कोई छुरी, चाकू, तलवार, भाला, रिवॉल्वर, बंदूक तो चाहिए ना। वो जो हथियार वेपन है उसका, वो साइंस है। साइंस बढ़ती जाएगी, साइंस बढ़ने से हमारा ईमान बिगड़ जाएगा। जब किसी आदमी के हाथ में सामने गुस्से में होवे और उसके हाथ में तलवार, छुरी, चाकू या रिवॉल्वर होवे तो हम कैसे डर जाते हैं। इसी तरह से ये जो साइंस है, जो दैत कालिंगा का हथियार है, इसके सामने हमारा ईमान डर जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं, साइंस की तरफ चले जाते हैं, साइंस को सच्चा मानते हैं। यही तो निशानी है उसकी, दैत कालिंगा की। आज दुनिया में जो कम्युनिज्म है वो कमजोर है, मगर हमको पीरों ने कहा है कि ये दिन ब दिन पावरफुल हो जाएगा और सारी दुनिया के कम्युनिज्म का सेंटर चाइना बनेगा। भले आज रशिया है और चाइनीज ने कम्युनिज्म रशिया से सीखा, लेकिन दिन में आप देखोगे इंशाल्लाह नेक्स्ट 25, 30, 40, 50 इयर्स में दिन ब दिन चाइना की ताकत बढ़ती जाएगी। ये चीज हमको 900 बरस पहले फिर शमस ने कही कि जब दुनिया के अंदर किसी को इस बात का इल्म नहीं था, मगर हमारे पीरों ने 1000 बरस पहले ये चीज को देख लिया। चाइना बढ़ता जाएगा। देखो पीरों ने कहा है कि चाइना के 40 लाख दुनिया में एजेंट होंगे कि जो दुनिया के अंदर लोगों का दिल खराब करेंगे, यानी ईमान से हटाएंगे। है जी 40 लाख दैत कालिंगा नाचेला जी, 40 लाख यानी 4 मिलियन ते ಅವರನ್ನು ಜೀವ ಡೊಲಾವೆ ಜೀ
लोगों का दिल हिलाएगा, शंका में डाल देगा, मन स्थिर नहीं रहेगा। ये 40 लाख चेले, ये चेले कौन? साइंटिस्ट। दुनिया में 40 लाख साइंटिस्ट नवी नवी रमत करेंगे, नवी नवी डिस्कवरी करेंगे। दुनिया में 40 लाख साइंटिस्ट नवी नवी रमत करेंगे, नवी नवी डिस्कवरी करेंगे और लोगों को मजहब से हटा देंगे। जमात खाना छोड़ दिया टेलीविजन की वजह से, छोड़ दिया ना, बैठे रहते हैं उधर। बच्चों की इमेज खराब हो गया, कैरेक्टर खराब हो गया टेलीविजन की वजह से। ये खाली छोटी सी मिसाल देता, ऐसी तो बहुत सी मिसालें हैं। और कैसी कैसी वो चीजें पैदा करेगा। फरमाया है कि ये जो गारा है ना, गारा, गारा कहते हैं मड को, मड में से खंड बनाएगा, गुड़ बनाएगा। आज जो आप सेक्रीन खाते हैं ये टार में से निकलती है। टार जो है ये मड, काले रंग का टार, उसमें से सफेद रंग की एक थोड़ा टार मुंह पे रखो तो कितना कड़वा लगे पता, लेकिन यही सेक्रीन हम खाते हैं, वो मीठी होती है। जी गारो मंत्री ने दैत गोड़ बनावस जी, तिया गोड़ ना परब चलावस जी। परब मीन्स हिसाब बिगर की इसकी सप्लाई होगी, आपको जितनी चाहिए सेक्रीन मिलती है जी। पानी मंत्री ने दैत गरत बनावस जी, तिया गरत ना परब चलावस जी। पानी को ऐसा बना देगा कि वो घी मिलेगा। और वेजिटेबल घी खाते हैं, वो कहाँ से आता है? कोई गाय के पेट से नहीं निकलता। यही अलग अलग किस्म के पानी इकट्ठे करके उसमें से उसको घी बनाता है। यहाँ पानी का मतलब जूसेस। तो इस तरह से ये सारे गिनान के अंदर बहुत कुछ का है। मरे हुए माँ बाप को दिखाएगा, दहित कालिंगा मरे हुए माँ बाप को दिखाएगा। पीर शम्मस ने 900 बरस पहले जब जमात को ये सुनाया तो वो लोग हैरान हो गए। आज कुछ हैरानी की बात है? मेरा बाप गुजर गया, 25 बरस हुए, आज मैं उसकी वो फिल्म लगाता हूँ पर्दे के ऊपर, हमारे अब्बा घूमते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, मरे हुए माँ बाप को देखता हूँ। कागज लेके तो पीर ने फरमाया कि कागज मंत्री ने नहीं तो पोपट पढ़ा उसे। कागज को इस तरह से बुलाएगा कि जैसे पोपट बोलता है, पैरेट बोलता है। ये रिकॉर्ड, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, ये टेप रिकॉर्डिंग, ये कागज की तरह ही है ना। तो ऐसी ये सारी साइंस का हथियार कम्युनिज्म यूज करेगा। एक जमाना आएगा दीनदारों, रशिया भी गिर जाएगा, अमेरिका भी गिर जाएगा, दुनिया में एक ही वर्ल्ड पावर होगी और दैट विल बी चाइना। ये वर्ल्ड पावर का आज से 125-30 ईयर्स के बाद जो कोई भी प्रेसिडेंट या प्रेसिडियम का चेयरमैन उधर चाइना में बैठा होगा वो मगरूर हो जाएगा, मगरूर हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा, दुनिया को नाच नचाएगा। सारी दुनिया उससे कांपेगी और सारी दुनिया के अंदर कम्युनिज्म फैल जाएगा। बहुत थोड़ी पॉकेट्स बचेंगी दुनिया में कि जहाँ कम्युनिज्म नहीं आएगा, और उसकी साइड के अंदर बहुत कुछ सस्ता मिलेगा, बहुत कुछ, लोग ज्यादा उसकी तरफ जाएंगे, आसानियां मिलेंगी, राहतें मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, बड़ाइयां मिलेंगी, ओहदे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा और दुनिया में भगत दिन ब दिन घटते जाएंगे, घटते जाएंगे। कोई नवाई की बात नहीं कि 20 मिलियन में से आज हम 15 मिलियन रह गए हैं, गए लगभग 50 बरस में। इस्माइली घट रहे हैं और भी घटेंगे, इस्माइली घट जाएंगे, पॉपुलेशन में घट जाएंगे। बहुत से इस्माइली हैं वो मजहब छोड़ देंगे, कोई किसी मौलवी की वजह से, कोई नमाज की वजह से, कोई मस्जिद की वजह से छोड़ दिए। पाकिस्तान के अंदर करीमाबाद के अंदर इस्माइलियों ने 4-5 हजार इस्माइलियों ने अपना मजहब छोड़ दिया, मस्जिद में जाके सुन्नी हो गए। और बहुत से ऐसे सुन्नी हैं कि जो वो कम्युनिस्ट हो गए। आज ये ईरान और इराक के अंदर कितने कम्युनिस्ट हैं वो शायद सबको पता ना होगा। तो दुनिया के अंदर मजहब की उथल पाथल हो जाएगी, दुनिया के अंदर मजहब घट जाएगा, इमाम के आजू बाजू में बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे। ऐसा वक्त आएगा कि पीर शम्स कहते हैं
12 कोस पे एक बत्ती जलेगी। कोस कहते हैं 2 माइल को। आज तो हम देखते हैं एक रूम में देखो कितनी बत्तियां हैं, और बाहर निकलो तो 1 माइल के अंदर 40 बत्तियां लगती हैं रास्ते के अंदर। और क्रिसमस कहते हैं कि 24 माइल पे एक बत्ती जलेगी। ये बत्ती ईमान की बत्ती। दुनिया के अंदर 24 माइल के रेडियस के अंदर एक मोमन नजर आएगा कि जिसके दिल के अंदर ईमान के मोहब्बत और नूर की बत्ती जलेगी। इतना दुनिया के अंदर दुख बढ़ जाएगा, रात दुखों से भर जाएगी, और आखिर फिर मौला उठ के अपनी रूहानी ताकत से फोर्सेस ऑफ नेचर काम करेंगी और दंत कालिंगा को मारेंगी। उस वक्त दुनिया की वस्ती 15-16 बिलियन हो जाएगी। 15-16 बिलियन। और जब शांति होगी तो 30-40 करोड़ आदमी बचे होंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी तमाम सिटीज बर्बाद हो जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, मोटरें नहीं रहेंगी, ट्रेनें नहीं रहेंगी, एरोप्लेन नहीं रहेंगे, और हमको गामड़े की जिंदगी वापस शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन सुख शांति होगी, मोहब्बत होगी, कोई क्राइम नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, सुख की नींद सोएंगे, खुदा को याद करेंगे, रात दुखों की खत्म हो जाएगी और सुखों की सुबह शुरू हो जाएगी। और इस पीरियड को जो सुखों का पीरियड होगा, फिर कहते हैं कि 125,000 ईयर्स तक लंबा होगा। और ये सुखों का पीरियड 1.25 लाख वर्ष रिखियों राज करे, पश्चिम महादिन बन जाए। उसके बाद ये जो धरती है, ये जो अर्थ है, बर्बाद हो जाएगी। 125,000 ईयर्स का सुख शांति का पीरियड निकलेगा, और उस पीरियड के अंदर कोई गुनाह नहीं होगा। तो जब ये रात खत्म हो जाएगी, दिन उगेगा, इसी को सुबह कही गई। अब मैं आपको कुरान शरीफ के अंदर से ये 10 अवतार की बात बताऊं। जो इमाम ने फरमाया ना, कुरान के अंदर 10 अवतार की बात है। मैंने आपको बताया दीनदारों कि दुखों का जो पीरियड है, हम उसको रात कहते हैं और सुख को फजर कहते हैं। सूरतुल फजर कुरान शरीफ के अंदर एक सूरा है। अल्लाह फरमाता है कि वल फजर, मैं सुबह की कसम खाता हूँ। कसम किसकी होती है? जो चीज हमें प्यारी होती है। सुख शांति के पीरियड को खुदा प्यार करता है, इसके लिए खुदा ने कसम खाई, वल फजर वल लियालिन अश्रिन, 10 रातों की कसम। पहले सुबह की कसम खाई, फिर 10 रातों की कसम खाई। वशिफे वल वस्र, और इवन और ऑड की कसम खाई। वल्लैल इज़ा यस्र, हल फी ज़ालिका क़स्मुन लिज़ी हिज्र, एंड द नाइट। हाँ, बाय द डॉन, खुदा ने सुबह की कसम खाई। एंड द 10 नाइट्स, मैंने आपको 10 नाइट समझाई, उन 10 रातों की कसम। एंड द इवन एंड द ऑड, ये इवन और ऑड क्या? ये 10 अवतार और 10 दैत, ये इवन एंड ऑड। एंड द नाइट व्हेन इट मूव्स ऑन टू इट्स एंड, इस रात की कसम के जो खत्म होने वाली है, 125 वर्ष के बाद आज से खत्म हो जाएगी। इज देयर नॉट इन इट ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर ए मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, खुदा कहता है, क्या तुम्हारे लिए समझने के लिए ये प्रूफ काफी नहीं? खुदा कहता है, इज देयर नॉट इन इट ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर ए मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये वो है 10 अवतार की बातें कि जिसकी तरफ इमाम समान ने इशारा किया कि 10 अवतार को इस्लामिक प्रिंसिपल से समझाओ। मैं अपना ये लेक्चर खत्म करूं, आपके सामने कुछ पढ़ना चाहता हूं। मेरी एक बुक इंशाअल्लाह थोड़े टाइम में बाहर आएगी। उस बुक का नाम होगा इस्माइली तारीखा, हमारे मजहब के प्रिंसिपल्स।
इस्माइली मजहब की नजर से। बाद हमारे आदमी ये कहते हैं सरकार तो हमको हमारे पीरों ने हिंदुओं में से इस्माइली बनाने के लिए कहे। भाई हिंदुस्तान में पीर कभी गए? सबसे पहले जो हिंदुस्तान में पीर गए उनका नाम था पीर सदगुरु नूर, और वो इमाम श्री मुस्तनसिर बिल्ला फर्स्ट के जमाने में गए। इमाम मुस्तनसिर बिल्ला हमारे 18th इमाम थे। तो इमाम मुस्तनसिर बिल्ला के पिता का नाम क्या? मौलाना जाहिर। मौलाना जाहिर के पिता का नाम क्या? मौलाना हाकिम। यानी इमाम मुस्तनसिर बिल्ला ने हिंदुस्तान में पीर भेजे। उसके पहले यानी इमाम मुस्तनसिर बिल्ला के दादे इमाम हाकिम अलैहिस्सलाम ने पब्लिक के अंदर ये बात कही। देखो दीनदारो, मैं फोटो स्टेट कॉपी करके लाया हूँ। इस किताब का नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। मशहूर किताब है। इसकी 7 वॉल्यूम्स हैं और ये 6th वॉल्यूम है। इसके अंदर लिखा हुआ इमाम हाकिम की बाबत में, जो कि इस आदमी ने इमाम हाकिम को बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट नहीं किया। तो फरमाया है कि ही एस्पायर्ड अबव द फेम ऑफ ए प्रॉफिट, यानी ये कहता है कि इमाम हाकिम ने हमेशा अपने आप को पैगंबरों से भी ऊंचा समझा, और वो थे, इसमें कोई शक नहीं। एंड स्टाइल्ड हिमसेल्फ द विजिबल इमेज ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, और अपने आप को इंसानी रूप के अंदर फिजिकल इमेज में खुदा का नूर बताया। सच बात है, इसमें कोई झूठ बात नहीं थी। हु आफ्टर 9 आफ्टर तक वापस कहता हूँ कि मौलाना हाकिम कहते हैं, ये आदमी लिखता है कि हु आफ्टर 9 apparitions on earth was at length manifest in his royal person, खुदा का नूर इसके अंदर 10वीं दफा जाहिर हुआ, यानी इमाम हाकिम के अंदर। और इमाम हाकिम से पहले 9 दफा खुदा का नूर जाहिर हुआ इंसान के अंदर। तो 10 अवतार की बात है कि नहीं? तो ये तो हिंदुओं की बात तो नहीं। उस जमाने में, इमाम हाकिम के जमाने के अंदर, हमारे बाप दादाओं के अंदर से कोई इस्माइली था ही नहीं, क्योंकि सबसे पहला जो पीर हिंदुस्तान में आए वो तो इमाम मुस्तनसिर बिल्ला के जमाने में पीर सदगुरु नूर आए। ये तो उसके पहले की बात है। और वो ये बात किधर की है? कैरो की है। हाँ, एक भी हिंदू नहीं था, न कोई भगवान दास था, न मूलचंद था। और ये इमाम हाकिम के फरमान के लिए है कि इमाम हाकिम ने खुद को कहा कि मैं 10वीं दफा इस दुनिया के अंदर खुदा का नूर जाहिर हुआ हूँ। मैंने आपके सामने बहुत कुछ कहा, और अगर इजाजत मिले और हमारे अकबर भाई जो आज के मास्टर ऑफ सेरेमनीज हैं, मालूम नहीं बाहर चाय रखी कि नहीं रखी, मगर मैं कहता हूं कि जो अकबर भाई मंजूर करें तो मैं 3 क्वेश्चन फ्लोर में से जवाब देने को तैयार हूं, जो ये कबूल करते होंगे। तो अकबर भाई आइए इधर। ओके, उन्होंने कबूल किया है। 3 क्वेश्चन। हेलो, अच्छा, उन्होंने कहा 5 क्वेश्चन। प्लीज कम हियर। इसमें रिकॉर्ड होगा। There was a mention of 10 avatar in one of our Bangi Inan. Why has this mention been removed now? I see. Thank you very much. बंदगी के गिनानों के अंदर, गिनान में इसने कहा कि 10 अवतार का नाम क्यों निकाला गया। हकीकत यह है कि हम जो पहले पढ़ा करते थे बंदगी के गिनान के अंदर, वो पाठ बराबर नहीं था। लेकिन जो आज हम वो पाठ पढ़ते हैं, खत दर्शन की वेल में से 72 नंबर का पाठ है,
اور وہ पाठ इस तरह से है, हे जी दर्शन छे ए जागता आने शोधी लियो गुणवंत आजकल 10 माहे स्वामी आविया अने वरदेवा अनंत। इसमें सब तो निकाला नहीं जाए, पढ़ा जाता है। अवतार का लफ्ज इसमें नहीं है, अवतार का लफ्ज नहीं है, मगर ये ज्ञान का असल बात है। बहुत दफा ऐसा ना, हमारे बहुत प्यार करने वाले भगत होते हैं, आपको मालूम है बाज आदमी ऐसे होते हैं कि दूर से ही प्यार करते हैं, कोई गले लपट जाते हैं, कोई किस वगैरह करते हैं, कोई भींच के उसको दुख हो जाए इतना पहुंचा देते हैं। तो हमारे बहुत से ऐसे भगत हैं, हर बात के अंदर शाह करीम शाह मौला कह दिया, श्री सलाम शाह का नाम निकाल के करीम शाह कर दिया, और गिनान पे पढ़ते पढ़ते हमको मालूम ही नहीं। आशा जी समझावेला समय मत कोई चूको मौलाए छे गुरनी एंधानी। मौला को कहते हैं ये गुर की एंधानी है कि तू शाम को आके दुआ पढ़। तो इस तरह से हम लोग बहुत से गिनानों के अंदर हेर फेर कर देते हैं, नहीं होना चाहिए। पीरों ने जो चीज कही वो एग्जैक्टली रखनी चाहिए। According to us, Hazrat Ali was the first Zahir Imam. Before that, all the Imams were in Batin. So this now avatar, were they in the roof of Imam or were they in the roof of Prophet or what roof they were? अच्छा, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। टाइम की वजह से मैंने इसको जरा शॉर्ट किया। हमारे जितने भी ये 10 अवतार थे वो इमामत का नूर था। इन 10 अवतारों के बीच में जो लिंक है, यानी इनकी औलाद जो हुई, उसका नाम है विष्णुपुरी, इस सदरुद्दीन की बनाई हुई। यानी कृष्ण के बाप का नाम क्या था, लड़के का नाम क्या था। तो ये जो विष्णुपुरी के अंदर सितोत्र पात्र हैं, तो वो एग्जैक्टली बाप बेटे नहीं है, क्योंकि फिर सदरुद्दीन ने क्या किया, वहां तो पता नहीं कितनी सैकड़ों पेड़ियां निकल गई, मगर मशहूर एक एक पेड़ी ले ली। जैसे हजरत रसूल अकरम की जो पेड़ियां हैं, अल्लामा सुहेली नाम के एक थियोलॉजियन हुए, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह से लेके अदनान तक 40 पेड़ियां हैं। 40 पेड़ियां भी मिलती नहीं। फिर उसने ये भी लिखा है कि अदनान से लेके हजरत इब्राहिम तक 40 पेड़ियां हैं, यानी 40 जनरेशन है। तो पीर ने ये जो वंशावली लिखी है, जिसको हम विष्णुपुरी कहते हैं, इसके कंप्लीट विष्णुपुरी, जूनी जो दुआ थी हमारी गटपाट की, उसके अंदर कंप्लीट विष्णुपुरी है। तो उसके अंदर ये है कि ये अली अलैहिस्सलाम की एक ही फैमिली चली आती है, और ये सब के सब इमाम का नूर थे। अब मोहम्मद का नूर हर जमाने के अंदर रहा। तो पहले सतयुग के अंदर, सारे जमाने के अंदर गुरु ब्रह्मा थे, यानी गुरु ब्रह्मा कोई 17 लाख बरस जीते नहीं रहे, मगर गुरु ब्रह्मा की जो औलाद थी, ब्रह्मा 1, ब्रह्मा 2, ब्रह्मा 3, इस तरह से भी चले आए। तो चौथे पहले सतयुग के अंदर गुरु ब्रह्मा थे, विजय त्रेता युग के अंदर गुरु वशिष्ठ जी थे, तीसरे द्वापर युग के अंदर गुरु व्यास जी थे, और कलयुग के अंदर गुरु नबी मोहम्मद है। अभी नबी मोहम्मद का जब हम जिक्र करते हैं, व्यास जी और वशिष्ठ जी और गुरु ब्रह्मा, तो आज नबी मोहम्मद को फिजिकली इस दुनिया से गए हुए 1400 साल हुए, लेकिन हमारे जो पीर है वो गुरु ब्रह्मा की, नबी मोहम्मद मुस्तफा की नूरानी हालत है। अली का नूर इमाम है और मोहम्मद का नूर पीर है। तो हमारे अंदर शाह और पीर की जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो ये है। तो हमारे अली अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी थे पात्र, वो सब इमाम का नूर थे। यस,
from what you mentioned, it seems to me that without mentioning Darwin's theory of evolution, your views very much agree with this theory. But I am at pains to say that does it not conflict with our traditional view that we come from Adam and Bibi Hawa, and because of their nafrmani, he was thrown out into the world, and we are descendants of Adam and सवाल तो आप समझ गए। इस भाईजान का कहना यह है कि भाई एवोल्यूशन की तुमने बात की, मगर हमको तो ये कहा गया कि हम आदम की औलाद से हैं। मैंने अपने इस लेक्चर में कहा कि जो फर्स्ट एमीबा था वो आदम था, और हवा की जो स्टोरी है, आदम और हवा की स्टोरी, उसके अंदर बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आम तौर के ऊपर सब लोग मिस्टीरियस चीजों को समझ नहीं सकते, तो नॉर्मली हम कबूल कर लेते हैं। जैसे कि आज ही मैंने एक दफा ये जिक्र किया कि मैं एक दफा राजकोट में वाज करने के लिए गया। सिंप्लिसिटी इंसान के माइंड के अंदर जो होती है वो मिस्ट्री को नहीं समझ सकती। तो मैं वाज करके बैठा, दूसरी दुआ का टाइम हुआ। मुखी साहब ने एक भगत साहब को कहा, भगत साहब दुआ पढ़ो। भगत साहब फौरन उठे, आके मुखी साहब के पास बैठ गए। दुआ पढ़ो, अल्लाह मेरे आइकमान थो। उस जमाने में हम ऐसा बोलते थे ना, अकनाम पीरशा 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 पीरशा, एक तस्वीर पीरशा की निकाली। हम समझे अभी दुआ शुरू करेंगे, अभी दुआ शुरू करेंगे। जब एक तस्वीर पूरी हो गई, शातोजे दरगाह में कबूल का नूर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह हज़र इमाम हकनाम पीरशा 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 पीरशा, 12 तस्बीहें पीरशा की निकाली। शाह जो दीदार दे के आगे बैठ गए। जमात हैरान। मुझे पूछते हैं, सर देखा? मैंने कहा क्या देखा? बिल्कुल फरमान बरदारी है। कहते क्या ये दुआ है? मैंने कहा हाँ, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है। अगर दुआ नहीं आती तो 12 तस्बीहें पीरशा की निकालो। इस भगत साहब ने जब ही मुखी का फरमान सुना, तो मुखी का फरमान है वो शाफियत का फरमान है। उसने ना नहीं किया, उसने नहीं कहा मेरे को दुआ नहीं आती, क्योंकि इमाम ने फरमाया दुआ नहीं आती तो 12 तस्बीहें निकालो। उसने जमात से दुआ पढ़ाई। भले टाइम आधा घंटा निकल गया, कोई बात नहीं, मगर दुआ पढ़ाई। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन आज मैं टाइम नहीं दे सकता। मैं आपको इतना जरूर बोलता हूँ कि जब हम हदीसें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो हमको ऐसा उसके अंदर कोई गुंथायला हुआ एक चीज मिलती है, पजल मिलता है कि जो आसानी से हल नहीं हो सकता। हमको ये कहा गया कि वो जन्नत में थे, तो जन्नत में से खुदा ने उनको जब नाफरमानी की जन्नत में, तो खुदा ने निकाल दिया, नीचे फेंका। तो हदीसों में है कि हजरत आदम सीलोन में उतरे, यानी यहाँ गिरे, और अम्मा हवा जिद्दा में गिरी। जिद्दा अरेबिया में है। तो भाई ये कैसे गिरे? आज हमको पता लगता है कि स्पेसशिप में से जब आके ये गिरते हैं तो वो एक कैप्सूल होता है, वो समुद्र में गिर जाता है और फिर जाके बोट उनको निकाल के ले आती है। तो हो सकता है कि हजरत आदम और अम्मा हवा कोई दूसरी दुनिया या प्लेनेट में से आए होने, और इनका कैप्सूल आदम का यहाँ गिर गया, अम्मा हवा का वहाँ जिद्दा में गिर गया। हदीस है। अभी कौन से आदम की बात करते हैं? जमीन के ऊपर तो एवोल्यूशन हुई, और ये आदम अलैहिस्सलाम और हवा आसमान से गिरते हैं। आज ये सब्जेक्ट में सॉरी ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन हम दुनिया के अंदर इवॉल्व हुए हैं, मगर जमीन की इस करोड़ों वर्षों की लाइफ में तीनों का हिसाब देखूं तो लगभग 8-10 बिलियन बरस से ज्यादा इस दुनिया को हो गए हैं। साइंटिस्ट कहते हैं 3-4 बिलियन हुए हैं। चलो साइंटिस्ट कहें, लेकिन तीनों का हिसाब बहुत लंबा है। इस अरसे के अंदर अब ख्याल करो, जो खुदा ताला फरमाया है, जो उसकी मिसाल हमको एक्सप्लेनेशन नबी ने दी कि वो 120 फीट के आदमी थे, तो वो भी कहाँ से आए थे ना। हमको इस बात के अंदर कुरान और हदीस पढ़ के ऐसा लगता है, जो कि गिनानों में स्पेस के इशारे हैं।
स्पेस के इशारे हैं। हो सकता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम किसी दूसरे प्लेनेट में से आए हुए और यहाँ आके उन्होंने ड्वेलिंग की, उसमें से हम भी पैदा हुए। और उस जमाने के अंदर जब आदम अलैहिस्सलाम आए होंगे तो यहाँ जो ड्वार्फ और ये मिसिंग लिंक्स वगैरह है ये भी होती होगी, क्योंकि आज भी दुनिया के अंदर हम बात जगहों के ऊपर देखते हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के आजू बाजू के अंदर ये जो आइलैंड्स हैं, फिजी आइलैंड्स हैं और दूसरे आइलैंड्स हैं, 2500 आइलैंड्स हैं, उसके अंदर बात ऐसे लोग हैं कि कभी बैठा होवे तो बिल्कुल बंदर जैसा लगता है। डोडोमा एरिया के अंदर जो आदमी है, बाज ऐसे लोग हैं। तंजानिया के अंदर ये जो दूर से कोई जंगली गोरिल्ला जैसे लगते हैं, चिंपैंजी जैसे लगते हैं। तो दुनिया के अंदर आज इस किस्म के थोड़े से रेमिनेंट सैंपल्स रह गए हैं। हो सकता है कि ये आदम जिसको हम अबुल बशर कहते हैं, शायद वो किसी दूसरे प्लेनेट से आया होवे, लेकिन एवोल्यूशन की थ्योरी इंशाल्लाह कभी मौका लगेगा मैं आदम और हवा की बात को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जी, चौथा क्वेश्चन, 5वां जिसको तैयार रहना है हो जाएगा। इधर आ, नहीं इसमें रिकॉर्ड करो प्लीज, इसमें से एक सिलेक्ट करो, नॉट टू। અમો મિશનરીઓ અને જમાતો તમારા ઇલ્મની બહુ જ કદર કરીએ છીએ, અને જયારે તમે કોઈ પણ ઇન્સાન અથવા તો કોઈ પણ માણસના ઇલ્મની કદર થતી હોય એ જયારે કોઈ વસ્તુ રજૂ કરે અને એવી રીતે તમે આજે અમુક વસ્તુઓ રજૂ કરી, એની અંદર મને એમ લાગે છે કે કદાચ ભવિષ્યની અંદર કોઈ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પેદા ન થાય એટલા માટે, ફક્ત એટલા માટે જ હું એક પ્રશ્ન તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું અને એ જમાતને જરૂર સમજાવજો. હું જ્યાં સુધી સમજ્યો છું અને ત્યાં સુધી કદાચ બનવા જોગ છે કે બીજાઓ પણ આ પ્રમાણે સમજ્યા હશે કદાચ, કે આપણે સાયન્સની અંદર પ્રોગ્રેસ કરવો એ જાણે કે એક શેતાન એટલે દૈત કાલિંગાના તરફ પ્રોગ્રેસ કરવો એવી જાતની કદાચ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય. હું ધારું છું ત્યાં સુધી આ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ દૂર કરવા માટે આપણને એ સમજાવો કે આપણને સાયન્ટિસ્ટ થવાની પણ જરૂર છે. જેમ ઇસ્માઇલી દરેક ફિલ્ડની અંદર આગળ વધે છે એ પ્રમાણે હું ધારું છું ત્યાં સુધી સાયન્સની અંદર પણ આગળ વધવું જોઈએ, અને સાયન્સ એ કોન્ટ્રાડિક્ટરી નથી પણ એક કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે એમ મારું માનવું છે. જો એમાં કઈ તમે ખુલાસો કરી શકો તો जरूर करो। सवाल तो बहुत अच्छा है, मगर मेरे सारे लेक्चर में थे स्टार्टिंग से थे मैंने ये कहा कि कम्युनिज्म जो दैत कालिंगा है वो साइंस के हथियार को यूज करेगा। हमारे किचन के अंदर बहुत सी छुरियां हैं, तो मैं छुरियों से अपना गला नहीं काट रहा, मैं छुरियों से एप्पल काटता हूँ, फ्रूट काटता हूँ, यूज करता हूँ। मगर किसी आदमी, जनूनी आदमी को चाहिए तो वो छुरी से आघात भी कर सकता है, दूसरे को भी मार सकता है। मैंने साइंस का तो कोई विरोध न किया, मैंने ये कहा कि दैत कालिंगा साइंस का वेपन यूज करेगा, आप उसको अच्छे तरीके से यूज करो। साइंस के विरुद्ध की तो कोई बात नहीं की, और इधर हमारा मौला भी तो साइंस यूज करेगा, तो साइंस एक सेल्फ कुछ खराब नहीं। दैत कालिंगा कम्युनिज्म साइंस में बहुत तरक्की करेंगे और वो साइंस के हथियार को यूज करेगा। साइंस का हथियार अच्छे तरीके से भी यूज हो सकता है। इधर नॉर्थ अमेरिका में बहुत से लोग हैं जिनकी पॉकेट में रिवॉल्वर रहता है, और यहाँ तो रिवॉल्वर आसानी से मिल जाते हैं। तो क्या हर रिवॉल्वर रखने वाला खराब है? या रिवॉल्वर तो खराब नहीं, दैत कालिंगा यूज करेगा, साइंस खराब नहीं। 4 क्वेश्चन हो गए, समझ आए? ज्ञान में 5वां 6ला क्वेश्चन